नमस्कार नमस्कार, मेरा नाम है राजीव कुमार बजाज यानी आरकेबी और मैं हूँ इस वक्त एडवोकेट प्रदीप नंबियार जी के साथ। प्रदीप जी नमस्कार। नमस्कार सर, नमस्कार। और प्रदीप जी और मैं हम दोनों कहाँ हैं? नेशन नाउ पर। और नेशन नाउ हमेशा हमेशा आपके साथ। आप सबको जय हिंद, जय महाराष्ट्र, जय भवानी, जय शिवाजी, वंदे मातरम। वंदे मातरम। भारत माता की जय। जय हिंद, जय हिंद। Assalamu alaikum, sat sri akal, good evening, and to our viewers in China, ni hao. To our viewers in Japan, konnichiwa, Pradeep ji. Abaria ko jambo to our viewers in East Africa, South Africa, the continent of Africa, wherever they speak Swahili. Wherever they speak Swahili, and that's a lot of viewers, by the way. Yes. And that's a whole lot of viewers. We're getting a lot of viewers from China, actually. China is the most promising area, huge. And don't forget Vietnam. Bilkul. I don't know how, why are they so interested in Indian politics, but they are. But the Chinese I can understand. So, but that's really and truly very, very, very encouraging. So Pradeep ji, Trump Saab today on Truth Social says that I'm pleased to announce that India and USA are more or less, working out whatever differences there have been on the tariffs, and very shortly we shall have a solution. And very soon I shall be speaking to my very good friend Modi, Prime Minister Modi. And Mr. Modi, of course, reciprocated by praising Mr. Trump on Twitter. And Mr. Trump picked up that Twitter post of, X post of Mr. Modi and has pinned it on his Truth Social, which is fantastic. You got the stamp size and passport size. Yes, लेकिन प्रदीप जी एक चीज़ तो है, एक चीज़ मानना पड़ेगा, इस चैनल पर हम लोग शुरू से बोल रहे हैं 24-25 अगस्त से बोल रहे हैं कि भैया ये टैरिफ टिकने वाले नहीं हैं। Let's be very clear. ये टैरिफ जो हैं वो टिकने वाले नहीं हैं, ये जाने वाले हैं. And finally, Mr. Trump will see sense, and I believe he has seen sense after Mr. Jason Miller has been hired as our lobbyist. You've been always saying this. और वो साहब जो हैं पहले ट्रम्प के स्टाफ में हुआ करते थे, used to be the right hand man of Trump. Today he's got a lobbying firm of his own, and he's been hired by India, and he started work on the 30th of August. 29-30 अगस्त से उसने काम शुरू किया है, and he has brought us now to this pass. That's what I think. Wonderful. And whatever was happening is good. Some part to Miller, some part to Trump, some part to Prime Minister Modi. They say Israel ex-defense chiefs, they are praising the way, the defiance of Prime Minister Modi, the defiance not to succumb to Trump's onslaughts, and that is paid. The whole world seems to appreciate the way Prime Minister Modi has dignified एक image था कि I will not succumb, absolute defiance, and that is paid, and the whole world is appreciating that. जिस प्रकार से appreciate करना है, इजराइल को लोग ये कह रहे हैं कि आप प्लीज मिस्टर नेतन्याहू वहां सीख के कुछ आप सीखिए, मोदी जी से सीखिए, आप मोदी जी से सीखिए किस प्रकार से डिग्निफाइड तरीके से विदाउट सकम्बिंग टू प्रेशर ही डिफाइड हिम, एंड एट लास्ट ट्रम्प वाज द फर्स्ट टू ब्लिंक. और सबसे बड़ी बात यह है कि जो लोग बोल रहे थे ना मोदी ने कुछ नहीं कहा, ट्रम्प इतना बोल रहा है. आई हैव बीन सेइंग राइट फ्रॉम डे वन, द बेस्ट थिंग टू डू इज नॉट टू से एनीथिंग एट ऑल. What Mr. Modi is doing, he is following Atal Bihari Vajpayee, he is following Mrs. Gandhi, he is following Narasimha Rao, and he is following Dr. Manmohan Singh. Let's be very clear. हिंदुस्तान के ऊपर जब भी इस प्रकार की आपदा आई है, अमेरिकनों द्वारा क्रिएट की गई है, हमारे प्रधानमंत्रियों ने कभी, we have never indulged in a slanging match. Of course, there has never been a president like Trump. ट्रम्प साहब जैसा कोई राष्ट्रपति रहा भी नहीं है अपनी अमेरिका का, लेकिन फिर भी I would say hats off. And the most important thing is China lashes out at Trump on India's behalf. On India's behalf. इंडिया के बिहाफ में ट्रम्प को लथाड़ा चाइना ने कि आप इस प्रकार से इंडिया से बात नहीं कर सकते. You can't have trade tariffs the way you are doing. You can't do it. China to China. Now that's the heights of diplomacy. People say that diplomatic failure, but diplomatic success आप अगर गिनोगे तो ये है कि चाइना इंडिया के लिए बोल रहा है. Let's go straight to our guests, Pradeep ji. I think we've got a wonderful panel tonight. Can we go across to our guest, please? There you are. I can see my friend B.N. Kumar after a long time. B.N.K, how are you? All well, sir. नमस्कार. नमस्कार B.N.K साहब. आज वैसे भी संकष्टी है, तो ओम श्री गणेशाय नमः. बहुत धन्यवाद आपका, आप हमारे साथ जुड़ने के लिए B.N.K साहब. And but the only thing is very sad news as far as you are concerned, and I am concerned, and Pradeep ji is concerned, and Maharashtra is concerned. Salt pan land को सर
फ्री कर दिया, सुप्रीम कोर्ट ने फ्री कर दिया सर, अब बनाइए वहां पे। सो हम लोगों का हाल भी मुझे लग रहा है चंडीगढ़, दिल्ली और गुड़गांव का होने वाला है बहुत जल्दी, उसके ऊपर भी बात करेंगे हमें, विच इज रियली एंड ट्रूली सैड। I'm not sure who has briefed the Supreme Court. I'm not sure who are the people who've actually gone over there and presented the case, which is absolutely terrible. The salt pan lands is something which absorbs all the excess rainwater from Mumbai, which is why अभी तक मुंबई बचा हुआ है। सॉल्ट पैन लैंड के ऊपर भी अगर आप इमारतें खड़ी कर लेंगे, जो गुरुग्राम का भी हाल है वो हाल, मतलब मैं क्या बताऊं अब मैं इस विषय में। वेरी फ्रैंकली स्पीकिंग, मे बी BNK, you, Pradeep ji and I should file a separate petition to review petition, in fact. Review petition, I don't know whether we can file, but a corrective petition can be filed with the Supreme Court to kindly take one more look at your decision, because this is going to be terrible. Aviral Malik Saab, thank you very much sir for joining us. Always a great pleasure talking to you, and congratulations sir. Dr. Malik, congratulations sir. ट्रम्प साहब ने कहा कि भाई हिंदुस्तान और पाकिस्तान और इंडिया के बीच में, हिंदुस्तान और अमेरिका के बीच में जो टैरिफ हैं उसके ऊपर बातचीत चल रही है, और बहुत जल्दी मैं अपने मित्र मोदी जी से बात करूंगा। मोदी जी ने भी ट्रम्प से कहा कि भाई बहुत बहुत शुक्रिया आपका कि आपने हिंदुस्तान और USA के जो संबंध हैं उनके ऊपर अच्छी तरीके से, पॉजिटिव तरीके से ध्यान दिया। Great, and always a great pleasure having Pooja Mishra ji with us. Pooja Mishra ji, one of the most brilliant political minds at the moment among young people. Pooja Mishra ji, thank you very much ma'am. नमस्कार। बहुत शुक्रिया आपका कि आप हमारे साथ जुड़े। डॉक्टर मलिक, आप अभी गाड़ी में हैं क्या? Are you in a car or something? Are you in a vehicle? डॉक्टर मलिक? He'll be reaching home in 10 minutes. बिल्कुल हाँ जी, मैं ट्रैवल कर रहा हूँ अभी गाड़ी में। तो मैं सबसे पहले आपसे शुरू करता हूं सर, क्योंकि आपका नेटवर्क पता नहीं कब चले जाए, किसी को क्या मालूम। आई विल स्टार्ट विद यू। डॉक्टर मलिक, आप ये बताएं सर, जो ट्रम्प साहब और मोदी साहब के बीच में आज जो हुआ, बातचीत जो हुई, और टैरिफ को लेकर के तकरीबन दोनों की बातों से ऐसा लग रहा है कि एग्रीमेंट हो गई है। जिस प्रकार हम इस चैनल पर 24-25 अगस्त से बोल रहे हैं कि फाइनली टैरिफ विल कम डाउन टू अबाउट 14 और 15%, ऐसा मुझको लगता है। आप इस विषय के बारे में कुछ कहना चाहेंगे सर? बोलिए प्लीज डॉक्टर मलिक जी। नहीं, बिल्कुल निश्चित रूप से देखिए, जहां तक विषय एक तरीके से भारत और अमेरिका का, और भारत और अमेरिका की दोस्ती का, मित्रता का, और इस बार जो पुनः एग्रीमेंट क्या आपका सवाल है, मैं बिल्कुल स्पष्ट है। इसी तरीके से आई कांट हियर हिम। एक तरीके से सोचना आवश्यक है। और जी, मेरी आवाज आ रही है आप तक? अभी आ रही है सर, अभी आ रही है, बीच में चली गई थी। बोलिए सर, प्लीज बोलिए डॉक्टर मलिक जी। नहीं देखिए, जहां तक विषय एक तरीके से US इंडिया फ्रेंडशिप का, तो पुरानी है, और निश्चित रूप से जब भी जो भी आवश्यक एक तरीके से डिसीजन लेना होता है, वो मैं सोचता हूँ कि हमारी सरकार के द्वारा लिया जाता है। और उसके साथ साथ जहां तक विषय मित्रता जी स्पष्ट है, और US इंडिया को नहीं छोड़ना चाहे किसी रूप में, क्योंकि इंडिया एक ऐसा कंट्री है जो एंटी टेररिज्म है, टेररिज्म के खिलाफ लड़ाई लड़ने का स्पष्ट काम करता है, और जिससे दोस्ती करता है, जिससे मित्रता रखता है, पूर्ण रूप से निभाता है। और उसके साथ साथ जहां तक विषय है इंडिया का, पर्टिकुलरली अगर इंडिया की बात कर ली जाए, तो इंडिया निश्चित रूप से आज एक विश्वगुरु की स्थिति में है, मजबूत शक्ति के रूप में है, और वो ग्राउंड लेवल तक स्पष्ट नजर आ रहा है। और साथ साथ जहां तक विषय है मोदी जी का और डोनाल्ड ट्रंप जी का, और कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग बीच में अभी हुई थी, तो उस मिसअंडरस्टैंडिंग को मैं सोचता हूँ कि वो पूर्ण रूप से समाप्त होगी, और फिर नई अच्छी फ्रेंडशिप एक तरीके से चलेगी, नया युग प्रारंभ होगा, ये बिल्कुल स्पष्ट है। डॉक्टर मलिक, डॉक्टर अविरल मलिक, लोग जितने पॉलिटिकल पार्टीज है पहले क्रिटिसाइज कर रहे थे कि फॉरेन पॉलिसी फेलियर, डिप्लोमेटिक फेलियर। आज हमने देखा कि चाइना ने इंडिया के बिहाफ लताड़ा ट्रंप को कि दिस इज नॉट द वे यू हैव ट्रेड टैरिफ विद इंडिया, और ट्रंप उस आखिरकार खुद ब्लिंक किए, सरेंडर खुद पहले किए, और मोदी जी को ऑफर किया। तो क्या ये डिप्लोमेटिक फेलियर जो लोग कह रहे थे, किस प्रकार से देखते हो आप? नहीं देखिए, जहां तक विषय डिप्लोमेटिक फेलियर का, ये विपक्ष के आरोपों का, तो ये मैं समझता हूँ पूर्ण रूप से बेबुनियाद है, और किसी रूप में एविडेंस बेस्ड है ही नहीं, कोई इनमें लॉजिक नहीं है। अब इन्हें अपनी पॉलिटिक्स चलानी होती है, अपनी राजनीतिक बयानबाजी करनी होती है, करते हैं, करते रहे। लेकिन विपक्ष की जहां तक बात है, तो इस देश में विपक्ष की सरकार थी, ये कोई प्रशांत किशोर की पीके की पार्टी थोड़ा ही है। ये प्रशांत किशोर जी जो एक तरीके से पीके के उनकी नाम की शॉर्ट फॉर्म है, उनके उस नाम से वो बिहार में जाने जाते हैं, देश में जाने जाते हैं। तो पीके की पार्टी
पार्टी, जनसुराली कांग्रेस पार्टी, समाजवादी पार्टी, ये तो सत्ता में रह चुके हैं। वो तो अब प्रशांत किशोर क्या कहे क्या नहीं कहे, वो नई पार्टी है, वो कुछ भी कह सकते हैं। तो ये तो नई पार्टी नहीं है ना, जनता इनमें 1% विश्वास नहीं करेगी, इनकी सुननी भी नहीं चाहेगी जो इनके आरोप होते हैं, क्योंकि देश में इनकी सरकार रह चुकी है। और जब सरकार रही है वो इस देश की जनता ने देखी है कि किस तरीके से जब इनकी इस देश में सरकार मौजूद थी तो किस प्रकार का इनके द्वारा एक तरीके से इनके क्रियाकलाप थे, इनके कार्य थे। और उसके साथ साथ जहां तक विषय पर्टिकुलरली डॉक्टर मनमोहन सिंह साहब की सरकार का, डॉक्टर साहब की सरकार इस देश में मौजूद थी और किस तरीके से उस सरकार के दौरान मैं समझता हूँ सबने स्पष्ट देखा, लोगों ने स्पष्ट देखा कि विदेश नीति हो, रक्षा नीति हो, पूर्ण रूप से किस प्रकार का फेल्योर था और किस प्रकार से फेल्योर रहा, ये ग्राउंड लेवल तक नजर आया। और मैं समझता हूँ कि पूर्ण रूप से जो अंतर्राष्ट्रीय पटल की अगर बात कर ली जाए, अंतर्राष्ट्रीय स्तर की बात कर ली जाए, तो उस अंतर्राष्ट्रीय स्तर में मैं समझता हूँ स्पष्ट रूप से देखने को मिला जो विदेश नीति का एक तरीके से कोलैप्स रहा पिछली सरकार के दौरान। और भारतीय जनता पार्टी की आज सरकार है, आज मोदी जी के नेतृत्व वाली सरकार है, पूर्ण रूप से मजबूत सरकार है, सशक्त सरकार है, विश्वगुरु भारत है, नया भारत है, मजबूत भारत है, नंबर 1 इंडिया है। मैं समझता हूँ स्पष्ट रूप से एक तरीके से नजर आ रहा है। Wonderful, absolutely wonderful. Let me go across to Dr. Pooja Mishra. Pooja Mishra जी, डॉक्टर पूजा मिश्रा नमस्कार। डॉक्टर पूजा मिश्रा जी आप बताएं, अखिलेश यादव जी ने कहा है, बहुत अच्छी बात है कि आप लोगों की बातचीत हो रही है, लेकिन कृपा करके जरा जल्दी कीजिए इसको, क्योंकि हमारे ना जाने कितने हजार स्टूडेंट्स वहां पर हैं, कितने लाख इंडियंस वहां पर काम कर रहे हैं, H1B वीसा के ऊपर भी ना जाने कितने इंडियंस वहां पर काम कर रहे हैं, तो उनकी सुरक्षा का सवाल है। ऐसा अखिलेश यादव जी ने मोदी जी से रिक्वेस्ट करी है। पूजा मिश्रा जी जी, आपको नमस्कार, साथी वक्ताओं को मेरा नमस्कार। तो मुझे लगता है कि ये रिक्वेस्ट तो जायज है और हम शुरुआत से ही कर रहे थे। मैं फिर कहूंगी, ये चाइना जो है स्टैंड ले रहा है इंडिया के लिए, वो चाइना स्टैंड ले रहा है इंडिया के लिए क्योंकि 99.2 बिलियन रुपीस का ट्रेड डेफिसिट है ही चाइना के साथ में हमारा। तो वो तो लेगा ही, वो तो मौके पे है, उसको पता है। और उससे ज्यादा दगेबाज कोई और है नहीं, जब उसको मौका लगेगा तब वो खंजर भोग देगा हमारे पीछे। तो अभी उसको लग रहा है कि मौका है हमारे पास में, ये ट्रेड इनके साथ में, यूएस के साथ में चल रही है हमारी खटपट, तो चलो हम यहाँ पे मौका बुना लेते हैं इसी तरीके से। अब यूएस के साथ में अगर बात कर ली जाए तो आपको पता है कि उत्तर प्रदेश के काफी सारे ट्रेड जो है, और चाइना के साथ में अगर ट्रेड बढ़ता है हमारा तो भी जो है हमें परेशानी होगी, और यूएस के साथ में अभी परेशानी चल ही रही है। अब कह रहे बातचीत चालू हो गई है, ये सबको पता था कि अगर जो है आपने टैरिफ लगाया है तो टैरिफ आपने लगाया हुआ तो वो आपके मार्केट को भी जो है नुकसान पहुंचाने वाला है, इंडिया को नुकसान पहुंचाएगा। ऑब्वियस सी बात है कि अगर हमारे गुड्स को मार्केट नहीं मिलेगा तो हमें समय लगेगा कि हम कोई और नया मार्केट ढूंढेंगे, उसमें टाइम लगता है। तो ये जो है, जो अभी आप कह रहे कि वार्तालाप चल रही है उसमें टैरिफ को घटाया जाएगा तो यूएस के लिए भी बेनिफिट रहेगा। हाँ, चल रही है तो माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने सही कहा हुआ है कि अगर आप चला ही रहे बात, उसको जल्दी कर लीजिए। जो लोग परेशान हैं उनकी परेशानियों को सॉर्ट आउट हो जाए। वो कहते नहीं है कि का बरसा जब कृषि चुकाने पुनः चूंकि फिर का पछताने, तो वो वही चीज को ध्यान में रखते हुए मुझे लगता है राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी ने इसको कहा हुआ है। जी राजीव जी। डॉक्टर पूजा मिश्रा जी, अलग अलग पार्टी इंक्लूडिंग अखिलेश यादव जी कह रहा कि डिप्लोमेटिक फेलियर। क्या आज इंडो चाइना जिस प्रकार से बहुत बेहतरीन रिलेशनशिप, इंडो यूएस बेहतरीन रिलेशनशिप, करीबन 4 लाख वीजा चाइना ने इशू कर दिया है इंडियन प्रोफेशनल्स के लिए। वहां इजराइल कह रहे कि मोदी जी ने जिस प्रकार से अपने हॉनर को मेंटेन कर दिया है, वो हमारे प्राइम मिनिस्टर नेतन्याहू उनको सीखना चाहिए। तो पूरे विश्व में मोदी जी के सफलता का चर्चा है, मगर अखिलेश यादव जी कांग्रेस पहले कह रहे थे कि डिप्लोमेटिक फेलियर हैज मोदी टर्न्ड डाउन। क्या तो मोदी जी इसको टर्न अराउंड कर दिया है? अगर प्रदीप जी, अगर जो है अमेरिका, when we were fighting with the China, we were in conflict with the China, sorry, we were in conflict with the Pakistan. At that time, what US was doing? When we were in conflict with the Pakistan, what was China doing? चाइना, मैं हमेशा कहूंगी चाइना इज द एलिफेंट इन द रूम। हम उसको अवॉइड नहीं कर सकते हैं और कभी करना भी नहीं चाहिए। तब वो लोग क्या कर रहे थे, अभी जो है जब हम संभल गए हुए हैं, जब हम संभल गए हैं, उनको पता है कि अब ये मार्केट ढूंढ लेंगे, अब ये आगे बढ़ेंगे ही बढ़ेंगे, तब आप कह रहे हैं कि नहीं ये डिप्लोमेटिक ये सक्सेशन है। डिप्लोमेटिक फेलियर तो तभी हो गया ना जब आपको नीड थी,
जब आपको जो है क्वाड्रिलेटरल डायलॉग साइन कर रखे हुए हैं, उसके मेंबर्स आपके साथ में नहीं खड़े हुए, वही डिप्लोमेटिक फेलियर हो जाता है। जब आपने संघर्ष को झेल ही लिया, देश ने झेल करके आगे खड़े होने का निर्णय ले लिया, अब उनको पता चल गया कि जो है हम काम करेंगे मार्केट डेवलप करने के लिए, हम काम करेंगे स्वतः उद्योग पे काम करेंगे, उसके बाद में अगर कोई आ रहा है अपना बेनिफिट देखते हुए, यूएस अपना बेनिफिट देखते हुए आ रहा है, चाइना अपना बेनिफिट देखते हुए आ रहा है, चाइना को लग रहा है कि चलो ठीक है, जब पाकिस्तान के साथ में युद्ध होता है तो हम वहां पे प्रोवाइड करा देते हैं आर्म्स एंड एमुनिशन, और वहां पे हम फिर पाकिस्तान के साथ में खड़े हो जाते हैं। अब क्योंकि इनके साथ में यूएस के साथ में प्रॉब्लम हो रखी है, हमारे पास आ रहे तो हमारे पास मार्केट मिल जा रहा है, हम फिर से ट्रेड डेफिसिट हमारे से भी बढ़िया है, उसको आगे बढ़ा लिया जाएगा। तो इस तरीके से वो कार्य कर रहे हैं, तो हमारा डिप्लोमेटिक फेलियर तो था ही, और इसको हम कैसे सेलिब्रेट कर सकते हैं डिप्लोमेटिक सक्सेशन की तरफ से? अगर आपने जो है खुद कुछ डिक्रीज कर दिया हुआ है, बहुत गंदे तरीके से आप फेल हुए, अगर कल को फिर पाकिस्तान के साथ में हमारा कुछ कॉन्फ्लिक्ट हो जाता है, हमारे नेबरिंग कंट्री के साथ में कुछ कॉन्फ्लिक्ट हो जाता है, मान लीजिए यूएस के साथ में कॉन्फ्लिक्ट होता है फिर से, तो फिर क्या चाइना हमारे साथ में दिखेगा? क्या अगर हमारा पाकिस्तान के साथ में कॉन्फ्लिक्ट हो जाता है, कल की डेट में हो जाता, तो क्या फिर चाइना हमारे साथ में दिखेगा? तब माना जाता है कि जो डिप्लोमेटिक जो है सक्सेस हुआ है। इस समय नहीं माना जा सकता कि ये सक्सेस है। हाँ, ये भी नहीं कह सकते कि चलो डिनाई किया, इंडिया इज अ huge market for the China and US receives a lots and agricultural goods from the India। तो इसलिए दोनों देशों को जरूरत है कहीं ना कहीं, तो उनको लग रहा है कि अब तो पाकिस्तान के साथ में जो इनका कॉन्फ्लिक्ट था वो क्या बोलते हैं बाईपास हो रखा हुआ है, अब हमारे पास टाइम है। ये देखा जाए उनका भी फॉरेन पॉलिसी है जो आपके फॉरेन पॉलिसी से कहीं ना कहीं अलाइन करते हुए दिख रहा है कि हाँ ठीक है आपको भी आगे बढ़ना है। तो आप कह रहे हैं कि नहीं, बड़े मोदी जी का बड़ा सक्सेशन चल रहा है। मोदी जी का तो इतने सालों से चला था, लगभग 10 सालों से चला ही था ना, जो हमने देख लिया पाकिस्तान के कॉन्फ्लिक्ट में। वो 10 साल का सक्सेशन क्या रहा? अब आप हम कुछ महीनों के सक्सेशन, कुछ दिन के सक्सेशन को लेकर के अगर हम एक्सपेक्टेशन रख ले तो 10 साल का ये परिणाम तो कुछ दिन का क्या परिणाम होगा, आप कल्पना करिएगा। So before I go to BNK, and of course welcome Dr. Dhone Saab, thank you very much for joining us, great pleasure Thank you. sir, thank you very much। Before I go to BN Kumar Saab, मैम वो गोरखपुर इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट अथॉरिटी जो है वो तो बहुत बड़ी बड़ी बातें कर रही है मैम, कि तकरीबन 5,000 करोड़ के करीब की इन्वेस्टमेंट आने वाली है, जिसमें से अभी तक 1,800 करोड़ की इन्वेस्टमेंट आ चुकी है। और उत्तर प्रदेश में सारी चीजें फ्यूचर टेंस में होती हैं जी, तभी तो यहाँ पे जो है आप 2047 की बात करते हैं। नोबडी टॉक्स अबाउट 2025, nobody talks about 2024, nobody is talking about 2026। each and everyone in BJP are talking about 2047। ये क्यों अभी की बात नहीं, आपको शायद जानकारी नहीं होगी। राजीव जी, मैं आपको एक बात और बता देती हूँ कि यहाँ पे एक होता है आपदा दल, आपदा मित्र, जैसे कि हम लोग होते नहीं शिक्षा मित्र लेकर के शिक्षक देते हैं, वैसे आपदा मित्र होते हैं। उनको 3 साल से उनसे काम लिया जा रहा है, उनसे महाकुंभ में भी काम लिया गया, उनको पेमेंट नहीं की गई है और वो अभी भी परेशान है। दे हैव बीन राइटिंग लेटर्स अगेन एंड अगेन। दे मेट विद द गवर्नर, दे मेट विद द सीएम ऑफ उत्तर प्रदेश एंड अंटिल नाउ उनको पे नहीं किया गया। कह रहे हैं उनको हमने ट्रेनिंग दी हुई थी ये आपदा प्रबंधन के समय, वो कह रहे हैं कि हमने 245 डेज वर्क किया हुआ है, वो 245 डेज का ही हमें मेहनताना तो दे दिया जाए। और उनको बाकायदा ऑर्डर पास हो जाता है ना, क्योंकि अभी बाढ़ आ रखी हुई है। आपको पता है कि बाढ़ प्रबंधन में तो पूरी तरीके से धराशायी है उत्तर प्रदेश, और उत्तर प्रदेश में बाढ़ अभी मां गंगा जी का वाटर बढ़ा हुआ है और वो दिख नहीं रहा है कि अभी कम होने वाला है। ऐसा लग रहा है कि वो चलता चला जाएगा, वो स्टैग्नेंट है। स्टैग्नेंट होने के बाद में फिर वो 1-2 दिन बाद में फिर बढ़ जाता है। उसके अलावा जो प्रॉब्लम है तो प्रॉब्लम सेपरेट है ही। तो ये चल रहा है कि हम बात नहीं करते गोरखपुर में 18 करोड़ आ गए, किधर आ गए, क्यों ग्राउंड पे नहीं दिख रहे हैं, में आ गए होंगे। आई हैव अ लिस्ट गोरखपुर इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट अथॉरिटी की, जिसमें पेप्सिको, केएम डिस्टिलरी, ज्ञान डेयरी, टेक्नोप्लास्ट, सेंट्रल वेयर हाउसिंग कॉर्पोरेशन, कपिला एग्रो इंडस्ट्री, एपीएल अपोलो ट्यूब्स, इनके तो सारे यूनिट शुरू हो चुके हैं। और अडानी ग्रुप के अंबुजा सीमेंट ने और कोका कोला बॉटलर जो है अमृत बॉटलर्स उन लोगों ने लैंड खरीद लिए मैम। तो पहली इन्वेस्टमेंट तो आ गई है, तकरीबन 1850 करोड़ के करीब की इन्वेस्टमेंट तो आ गई है। ये तो मुझे लगता है कि लास्ट जब अपडेट था तब भी यही अपडेट था, इसमें प्रोग्रेस क्या हुआ है? नहीं, प्रोग्रेस है अडानी ग्रुप का हुआ है ना, अंबुजा सीमेंट्स एंड को अडानी नहीं, और कुछ भी होता है तो उत्तर प्रदेश का प्रोग्रेस नहीं होता। अभी हम लोग ये डिस्कशन कर रहे थे नेपाल को इशू को लेकर के, तो हम कहते हैं सजा देना, डेकोरेट अ सिटी इज नॉट द प्रोग्रेस। आप एम्प्लॉयमेंट जनरेट नहीं कर रहे। और अभी भी ये जो दिखा रहे हैं आपके, अभी आप देखेंगे तो गुड़गांव में भी कहा था सरकार ने आया हुआ है,
बहुत सारे प्रोजेक्ट है। And ma'am, it also says over here by वही Saturday, गोरखपुर में हो रहा है। मैम शनिवार को रिलायंस कंज्यूमर प्रोडक्ट्स लिमिटेड और श्री सीमेंट्स इनके साथ भी एग्रीमेंट साइन हो जाएगी गोरखपुर के लिए। सो कुछ आ तो रहा है, ऐसा तो नहीं है कि कुछ नहीं आ रहा। अगर वो धरातल पे दिखेगा तो हम मान लेंगे कि आ गया हुआ है। जब तक वो कागज पे चलता रहेगा, डॉक्यूमेंटेशन से लैंड बेची जाएगी, और लैंड बेची जाएगी, कंपनी आएगी, साल भर बाद में चली जाएगी, उसको बोलेगी नहीं हम लगा नहीं पा रहे हैं, हमने काम शुरू किया फिर हमें लग रहा है कि कॉपरेशन नहीं हो पा रहा है या फिर हमें मार्केट नहीं मिल रही है, तो चली जाएगी। तब तक नहीं, अनटिल एंड अनलेस जब वो आप जो कागज में काम कर रहे हैं वो प्रैक्टिकली अवेलेबल नहीं है। 1840 करोड़ गोरखपुर में आपको जानकारी है कि नहीं, एक एयरपोर्ट बना हुआ है गोरखपुर में जहाँ पे फ्लाइट उतरती है, वो तो बहुत पुराना है, प्रधानमंत्री जी की, बहुत और वो अभी तक शॉर्ट आउट नहीं हो पाया। बन तो गया ना गोरखपुर में, एयरपोर्ट बना हुआ है लेकिन कोई आ नहीं जा सकता, कोई यूज नहीं कर सकता है। करेक्ट, बट दैट हैज बीन देयर फॉर अ लॉन्ग टाइम। आई रिमेंबर दैट। यस, उसके ऊपर तो बहुत प्लान बन चुकी है, इंदिरा जी के वक्त से प्लान बन रही थी कि ये इसको ठीक कीजिए, इसको ठीक कीजिए। इट्स एन ओल्ड मिलिट्री एयरपोर्ट, ब्रिटिश के जमाने का एयरपोर्ट है मैम। पीएम ने अभी उसको इनॉग्रेट किया था और खुद ही आते हैं, इनॉग्रेट करने के लिए खुद आए, उसके बाद तो सभा करना तो खुद आए, और उसके कोई आ जा नहीं सकता है, वो वही बस आएंगे, उनके लिए हुआ है वो। देयर इज नो इंटरेस्ट मैम। क्या है कि अभी इंटरेस्ट है ही ना, नोबडी वांट्स टू फ्लाई ओवर देयर। अंदर के जो डोमेस्टिक फ्लायर्स जो हैं दे डोंट फाइंड इट प्रॉफिटेबल। अभी तक ये बाकी सब सारी इंडस्ट्री जब तक लगेंगे नहीं, मिनिमम 5000 के 10,000 करोड़ तक की इन्वेस्टमेंट नहीं आएगी, तब तक कोई आएगा नहीं। लेट्स बी वेरी क्लियर। BNK, let me go across to you. BNK, how do you foresee this entire thing? How do you perceive this entire thing about Trump and finally Mr. Modi's silence, restraint, and Piyush Goyal leading the delegation? Piyush Goyal साहब बड़े अच्छे मित्र हैं हमारे, आपके भी बहुत अच्छे मित्र हैं। तो आखिर में I think it's paid off. And what has really paid off is the fact that we appointed a new lobbyist and he started working on August 30th, Jason Miller. Jason Miller used to be a close confidant and right-hand man of Donald Trump in the Trump Corporation. After that, I think Mr. Trump seems to have changed his tune a little bit. BNK, please go ahead. Only last week I wrote a column saying USA का meaning है untrustworthy states of America. Yes. डोनाल्ड ट्रंप अभी भी ये कह रहा था कि मैंने इंडिया पाकिस्तान का युद्ध रुकवा दिया, अभी भी 42 बार उसने कह चुका है। और बोला मैंने मोदी को बोला, वो बोलता है मैंने मोदी को लाल आंख दिखाया इसके लिए, तो वो बैठ गया। एक से तरह से बोलता है मोदी मेरा फ्रेंड है, और ऊपर से बोलता है कि ये टैरिफ के ऊपर एक करेंगे। एक तो टैरिफ बढ़ा रहा है, बाद में बोलते हैं कि डिस्कशंस आर गोइंग ऑन। व्हाट इज द पॉइंट इन टॉकिंग लाइक दिस? आई मीन ही इज नॉट कोहेरेंट इन हिज थॉट्स एंड स्पीच। as far as your question on your I'll say conclusion on even Pradeep's conclusion on Modi's maintaining restraint, silence. I won't call it restraint, it is silence. He has been silence on that. He has been silence on many more foreign affairs issues also. On Israel, on Palestine issue, he has been silent. On China also has been silent. China is supporting Pakistan, as Pooja ji mentioned during the Operation Sindoor. He was silent on that. China, and we are diplomatically and trade-wise also proceeding towards China. Of course, that is very important for us to find alternative businesses, alternative routes in view of the US untrustworthiness. तो RIC का जो है रशिया, इंडिया, चाइना जो एक्सेस को मजबूत करने का, रिवाइव करने का, that's a good idea. But again, you should not depend too much on China. China has a very big vested interest. अभी आज पेपर में था, न्यूज़पेपर्स में आईफोन की जो i17 वाली जो फैक्ट्री शुरू होने वाली, प्रोडक्ट रिलीज होने वाली है इंडिया से, वो उसमें काफी सारे पार्ट चाइना से आ रहे हैं। दिस फैक्ट्री इज डिपेंडिंग ऑन चाइना। चाइना से किट्स आएंगे, यहाँ से असेंबल होंगे, यहाँ से हम लोग एक्सपोर्ट करेंगे। अगेन अमेरिका इज वेरी बिग मार्केट फॉर आईफोन्स. So this is Sir, iPhone 17's what Tim Cook has said just now, just for your information, is that all iPhone 17's to be sold in America are going to be made in India. That's what he made said. in India, correct? That's right. Made in India, correct. That's what I'm saying. It's a big market for America, which of course friend Trump tried to stall. That did not work out. But of course, the tariff, how long this tariff war will last will depend on that. BN Kumarji, Modi has upheld national honor. मोदी जी has upheld national honor. ये इंटरनेशनल जितने भी कंट्रीज है, ये डिस्कशन का एक टॉपिक बन गया है। मैनेजमेंट स्कूल्स में एक टॉपिक बन गया है। हाउ प्राइम मिनिस्टर हैड very magnificently upheld himself, never succumbed to Trump,
took on China, took on US, maintained balance. Ultimately, China supports India and US blinks first. Trump blinked first. That is what the whole world is seeing, and that's become national example for all people asking their leaders to emanate Mr. Modi. How do you see that? Till now we were talking about failed diplomacy. Did Dr. Pooja Mishra did to speak about that? How do you see this? A global leadership displayed by Prime Minister Modi. B.N. Kumarji. You should take a balanced view. I don't think all the countries in the world, all the newspapers, all the media in the world are upholding this kind of a situation. There have been very issues of concern, like our relationship with Pakistan. We have had all the three series of attacks, Pulwama, Pahalgam, etc. उसमें लोगों ने टेरर अटैक को कंडेम किया, but nobody condemned Pakistan. Nobody named Pakistan. Even we didn't name during our Mr. Modi also did not name Pakistan in the last the meeting with the SEO session. So that is why he is maintaining a different kind of a stand on that. But as far as our foreign diplomatic is concerned, it is still there are lots of question marks on that. BJP will claim successes, opposition will say there are failures, but we have to take a balanced view. The fact that China had supported Pakistan despite the current ongoing relationship with and they will with China. continue to support Pakistan. China is also selfish. China is also selfish. Why not? Why shouldn't they be? आप खुद सोच के बताइए ना बीएन कुमार साहब. China will look after Chinese interests. हिंदुस्तान जो है वो अपने इंटरेस्ट को देखेगा. Why should China look after our interests, sir? China और हिंदुस्तान के interests are aligned at the moment. They need not. That's it. But you are the one, RKB. You are the ones who just said China condemned US on Yes, he the did. tariff issue. Yes, they did. So because that- it suits them right now. But then, what about Pakistan? What about Pakistan? What about it? What about it? Pakistan China has been China's old ally and will continue to remain China's ally in the future. Sir, they have invested billions and billions of dollars in the China-Pakistan economic corridor. आपको क्या लगता है कि वो चले जाएगा? सर, नहीं जाने वाला. We have to live with it. चले नहीं जाए. कम से कम. Sir, there has to be. उसके कान तो खींच सकता है. Sir, there has to be a Trapeze Act. No, कांच तो खींचा है ना. क्यों खींचेंगे सर? They said that you can't sovereignty, हमारे sovereignty पे आप रोड नहीं चला सकते. That's what we have said. The BRI project को मोदी जी ने in China criticize किया. They said जो BRI project है, बोले you have come sir, technology ठीक है, infrastructure build up ठीक है, but हमारे sovereignty को आप encroach नहीं कर सकते. Very clear terms. मोदी चाइना में जाकर कॉम्प्रोमाइज नहीं किए. और दूसरी बात क्या है, सबसे बड़ी बात क्या है, डॉक्टर मलिक, आप ये देखें कि अजरबैजान वांटेड टू बी पार्ट ऑफ द कोर ग्रुप ऑफ द एससीओ, शंघाई कोऑपरेशन काउंसिल के कोर ग्रुप. लेट मी गो टू डॉक्टर ढोने फर्स्ट. डॉक्टर ढोने, क्योंकि उनके नेटवर्क की प्रॉब्लम है. डॉक्टर ढोने, अजरबैजान बहुत कोशिश कर रहा था कि किसी भी तरीके से एससीओ जो है शंघाई कोऑपरेशन काउंसिल के कोर ग्रुप में आ जाए. हिंदुस्तान ने उसको वीटो कर दिया. टर्की की मेंबरशिप को भी वीटो किया. इसलिए किया कि बोथ ऑफ देम स्टूड टोटली बाय पाकिस्तान. अब चाइना के बारे में तो आप कुछ कर नहीं सकते, सीधी सादी बात है, क्योंकि चाइना हमारा नेबर है. यू हैव टू हैव गुड रिलेशन विद चाइना वेदर यू लाइक इट और नॉट, because you can't fight them militarily. You can fight them militarily certainly. In the limited border engagement you can fight them and throw them back also. लेकिन फुल स्केल वॉर चाइना के साथ नहीं कर सकते ना अभी. अब आप बताएं डॉक्टर ढोने, डोंट यू थिंक दैट्स अ मेजर विक्ट्री? आपको लगता नहीं है भारत के लिए ये एक गर्व की बात है कि आज ट्रम्प साहब बात कर रहे हैं? पहले तो बोल रहे थे डेड इकोनॉमी, यू नो दे कैन डू व्हाटएवर, दे कैन बाय ऑयल फ्रॉम पाकिस्तान, इस किस्म की बातें कर रहे थे ट्रम्प साहब. आज ट्रम्प साहब बोल रहे हैं कि भाई दोनों के इश्यूज जो हैं सॉल्व हो जाएंगे और मेरे बड़े अच्छे मित्र मोदी जी, उनसे मैं बात करूंगा बहुत ही जल्द. ढोने साहब बोलिए सर, प्लीज गो अहेड. ऐसा है सर कि मोदी जी जिसको मित्र बोलते हैं, या दुनिया का कोई नेता जो मोदी जी को मित्र बोलता है, बाद में वो क्या करता है आपने देख लिया. नवाज शरीफ के घर में गए थे ये बिरयानी खाने के लिए मोदी जी, उसके बाद उन्होंने क्या किया पाकिस्तान में आपने देख लिया. बिरयानी की बात कर रहा है, बिरयानी नहीं खाई सर. चाइना के राष्ट्रपति के साथ ये झूला झूले अहमदाबाद में जी. उसके बाद उन्होंने अपने देश की जमीन पे कब्जा कर लिया वहां पे. और इनके अरुणाचल प्रदेश के जो भाजपा के सांसद है उन्होंने ये बात पार्लियामेंट में बोली है
कि ये अपने जमीन पे कब्जा किया है। तो चाइना के साथ इन्होंने, उनके राष्ट्रपति के साथ झूला झूला, बाद में इन्होंने अपने देश पे कब्जा किया। वो पाकिस्तान के प्रधानमंत्री के यहाँ पे गए, उसके बाद उन्होंने हमले किए, 1 2 हमले 3 हमले किए उन्होंने। तो और अमेरिका, माय फ्रेंड डोनाल्ड ट्रम्प बोले उन्होंने, और अब की बार ट्रम्प सरकार और ये पूरे भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस के लोगों ने होम हवन किया और पूरे देश में माहौल किया कि हमारे दोस्त है और ये सनातन के दोस्त है। और वो ट्रम्प ने बाद में क्या किया कि वो असीम मुनीर जो एक सेना का एक चीफ है जी। उसको बुलाया व्हाइट हाउस में। तो जिसने हिंदुस्तान के खिलाफ बोला, हिंदुओं के खिलाफ बोला, हिंदू धर्म के खिलाफ बोला, उसको व्हाइट हाउस में बुला के उसके साथ खाना खाया ट्रम्प ने, जो मोदी जी के मित्र है। तो मोदी जी का अगर कोई बोलता होगा कि मेरे मित्र है मोदी जी, या मोदी बोलते होंगे कि कोई मेरा मित्र है, तो समझ लेना कि अब भारत पे कोई तो भी आफत आने वाली है। डोने साहब, जब ट्रम्प ने कहा कि इंडियन इकोनॉमी इज अ गुड इकोनॉमी, इंडियन इकोनॉमी इज अ गुड इकोनॉमी, ये ट्रम्प साहब का कहना है। 2 दिन पहले, 1 हफ्ते पहले उन्होंने बोला इंडियन इकोनॉमी इज डेड इकोनॉमी, तो राहुल गांधी जी ने हंगामा मचा दिया था, बोले पूरा दुनिया जानता है इंडियन इकोनॉमी इज डेड इकोनॉमी। तो आज जिस प्रकार से ट्रम्प साहब ने कहा गुड इकोनॉमी, क्या कांग्रेस का रवैया बदल जाएगा? आप भी कहेंगे यस इंडियन इकोनॉमी इज गुड इकोनॉमी? देखिए, कांग्रेस जो है मोदी और ट्रम्प को एक ही नजर से देखती है, दोनों एक जैसे है, दोनों सीरियस नहीं है। अब वो अमेरिका के लोगों की गलती हो गई, उनको चुनाव में जिताया, जैसे तो यहाँ पे दोनों भी गलती एक हो गई, जैसी है, जैसे यहाँ पे गलती हो गई, वही बोल रहे हैं ना एक जैसी है दोनों की। दोनों भी सीरियस नेता है नहीं। अब वो कुछ वहां पे भी जो भी माहौल बना होगा या पैसों का माहौल बना होगा वो जीत गए, लेकिन हमारे नजर में मोदी जैसे है झूठ बोलने वाले, सीरियस नहीं है, वैसे वो भी है ट्रम्प। वो बदल दिए उन्होंने, उनको लालच दिया होगा कि हम आपके देश में कुछ व्यापार करेंगे, ऐसा करेंगे। वो भी व्यापारी आदमी है ना, वो खुद व्यापारी है ट्रम्प, जिसका 7 बार दिवालिया निकल चुका है, जो 7 बार दिवालिया हो चुका है। मोदी जैसे नेता नहीं है, मोदी भी व्यापारी है। वो बोलते मेरे खून में व्यापार है, खुद बोले उन्होंने। और बोलते कि कोई सेना में जो काम करने वाला सैनिक जो जितना शौर्य दिखाता है, उससे ज्यादा शौर्य तो व्यापारी दिखाते हैं। ये मोदी जी के शब्द, और मेरे खून में व्यापार है बोलते। मोदी जी भी व्यापारी है। मोदी जो विदेश दौरे में जाते हैं तो व्यापार करने के लिए जाते हैं। वो अब उनके दोस्त लोगों का फायदा होता है, उसमें उनका क्या रोल है वो हम बोल नहीं सकते, लेकिन लोगों को दिख रहा है कि हर दौरे में, मोदी जी के हर दौरे में अदानी, अंबानी, मित्तल, पारेख, ये लोगों को कुछ ना कुछ कॉन्ट्रैक्ट मिल ही जाता है। नहीं, होना भी चाहिए। धोनी साहब, उसमें गलत क्या है? हमारे बिजनेस को, इंटरनेशनल बिजनेस करने में अगर कोई प्रधानमंत्री मदद कर रहा है तो उसमें गलती क्या है? वो क्या देश को क्या फायदा हो रहा है इनका? देखिए, टाटा हो गए, बिरला हो गए, इनकी इस देश में योगदान है, देश को बढ़ाने के लिए काम करते हैं, देश को मदद करते हैं, चैरिटी करते हैं। ये अदानी और अंबानी क्या करते हैं? अंबानी के खुद के माँ के नाम से उन्होंने हॉस्पिटल खोला है, कोकिलाबेन हॉस्पिटल, कोकिलाबेन अंबानी हॉस्पिटल। उसके लिए जगह लिए गवर्नमेंट से, और वो पूरा कमर्शियल है, उसमें कोई चैरिटी नहीं है। तो ये ऐसा है इनका कि ये देखिए, उद्योगपतियों को मदद करना चाहिए, लेकिन वो उद्योगपति जो देश के लिए कुछ करते हैं, कुछ चैरिटी करते हैं, ऐसे लोगों को मदद करना अलग है। जो सिर्फ बीजेपी को फायदा पहुंचाते हैं, बीजेपी को डोनेशन देते हैं, उनको फायदा करने की कोशिश करते हैं मोदी जी। आपकी इजाजत हो तो मैं कुछ पूछूं सर आपसे? बोलिए सर। कोकिलाबेन चैरिटेबल हॉस्पिटल, कोकिलाबेन हॉस्पिटल जो है, इट इज वन ऑफ द प्रीमियर हॉस्पिटल्स ऑफ मुंबई इन इंडिया। उसकी जमीन आपने अलॉट करी, उसका लाइसेंस जो है कांग्रेस ने दिया, कांग्रेस के मुख्यमंत्री थे, उन्होंने एक एक परमिशन दी, उस वक्त एक एक चीज बनी, जो कॉन्ट्रैक्ट साइन हुआ सरकार की तरफ से वो आपने दिया, सब्सिडाइज रेट पे जो इलेक्ट्रिसिटी उनको मिलती है वो कांग्रेस ने दी, और आप ब्लेम कर रहे हैं बीजेपी को। सर ये तो आपकी देन है। अब नहीं, ठीक है, मैं आता हूँ उस बात पे, आता हूँ उस बात पे। बोलिए, मैं वेट कर रहा हूँ, बोलिए। अब अंबानी जैसा आदमी अपने माँ के नाम से हॉस्पिटल खोल रहा जी, तो किसको भी क्या लगता है कि भाई ये चैरिटी करने के लिए खोल रहे हैं अपनी माँ के नाम से, यहाँ तो कारोबार करेंगे नहीं, यहाँ तो बिजनेस करेंगे नहीं। जब माँ के नाम से हॉस्पिटल खोल रहे हैं
तो कुछ सेवा के लिए कर रहे हैं, चैरिटी के लिए करेंगे, ये सोच के आदमी बोलता है कि भाई बड़ा आदमी है, कर रहा, चैरिटी करेगा, चलो उसको मदद कर दे, यही भावना थी। लेकिन जब हॉस्पिटल खुला सर हर बाद में हॉस्पिटल देखे तो में ये तो लूट है। डॉक्टर ढोने, शायद आपको मालूम नहीं है, बीएनके माइट bear me out or no, I don't know. सर हर हॉस्पिटल में भारत में, इनफैक्ट मुंबई के बारे हाँ में वो बोल सकता सीटें हूं। रहती है सर, मुझे सर मालूम देर है। आर 33%, हाँ, 25%, मुझे मालूम है। 23%. In Kokilaben, there are about 24% beds which are completely free, where treatment is completely free. और अगर आपको लगता है कि कोकिलाबेन अंबानी अस्पताल में ऐसा नहीं चल रहा, आप कोर्ट जाइए, लाइसेंस कैंसिल करवा दीजिए। सर ऐसा प्रॉब्लम क्या है, है सर? जाइए ना, फाइल नहीं, रिट ठीक है। पिटीशन, यू आर इन द कांग्रेस। ऐसी क्या बात है सर? चैनल के ऊपर बैठ के बोलना बड़ा आसान है, मैं आपके साथ चलता हूं ना। यू गिव मी दी एविडेंस कि इन लोगों ने चैरिटेबल बेड्स जो हैं, फ्री बेड्स जो हैं, फ्री पेशेंट्स को ट्रीटमेंट नहीं दी है, आई विल गो विद यू, मैं आपके साथ चलता हूं, बोलो। सर ऐसा है, जो अंबानी जैसे लोग जो हिंदुस्तान के सबसे अमीर शख्स है या 2 नंबर पे आ गए होंगे, तो ऐसी उम्मीद है कि आपकी उन्होंने वजह से। चैरिटी करनी चाहिए हॉस्पिटल के नाम से, आपकी वजह से। वहां तो धंधा नहीं करना चाहिए। अंबानी जगह ग्रुप, छोड़ दीजिए रिलायंस धंधे के ग्रुप लिए। इतना बड़ा बना है आपकी वजह से, कांग्रेस की वजह से। वो सबसे ठीक है, पहले कांग्रेस ने किया होगा पॉलिएस्टर कि भाई चिप्स, ये आदमी अपनी नाम माँ के नाम से करेगा, सर, तो पॉलिएस्टर कुछ चिप्स भला का जो करेगा पहला लोगों के, कॉन्ट्रैक्ट दिया charity के लिए गया। कर रहा। कांग्रेस वालों को मालूम नहीं था कि ये इतने भी खराब लोग रह सकते हैं। कमाल है। हाँ, बट थोड़े साहब ये बहुत सारे इतने भी स्कीम्स अपने हमने माँ के आप ही नाम के से राजीव हॉस्पिटल गांधी खोलेंगे। स्कीम जो कांग्रेस सर, वाह जी, देखिए, वाह। उस सर, राजीव सुनिए, गांधी सुनिए। स्कीम में बहुत सारे मैं बेनिफिशियरीज है, लीलावती हार्ट सुनिए, ऑपरेशन, मैं हार्ट लीलावती ट्रांसप्लांट, हॉस्पिटल हार्ट में भी बाईपास, जाके आया हूँ, बहुत मेरा सारे ये ट्रीटमेंट कोकिलाबेन मैंने हॉस्पिटल और किया। दूसरे मुझे अंबानी के बॉम्बे हॉस्पिटल हॉस्पिटल जो भी है मालूम है, मुझे उसमें लीलावती चालू मालूम है। है, मुझे कोकिलाबेन हॉस्पिटल भी मालूम है। वहाँ के जो डॉक्टर है, मैं पहचानता बहुत हूँ, करीब से सारे करीब डॉक्टरों लोग को। मिले हैं, उनको और बहुत फैसिलिटीज मैंने मिले हैं देखा वहां पर, ऐसा नहीं है कि नहीं मिला। वहाँ मैं खुद जानता हूं कितने गरीब से गरीब जो हैंड टू माउथ एग्जिस्टेंस है, पॉवर्टी से, उनका हार्ट बाईपास वगैरह उस हॉस्पिटल में हुआ है फ्री ऑफ कॉस्ट। फ्री ऑफ कॉस्ट। Sir, 24% patients are treated free in Kokilaben Hospital. I am saying so right now. If you can contradict me, if you can show me evidence, I will go with you to court. मैं कंप्लेंट करता हूं आज, बोलिए। मुझे जो जानकारी है, मिनिमम 24% पेशेंट्स की वहां पे देख रेख बिल्कुल मुफ्त में होती है, जीरो एक्सपेंस पे होती है सर, कोकिलाबेन हॉस्पिटल में। मैं बोल रहा हूं, ये क्लियर कट बोल रहा हूं। And by the way, that is not with Mukesh Ambani. That, by the way, is with Anil Ambani. As far as I know. But all hospitals are But by the way, which is true also for all hospitals. सब हॉस्पिटल करते हैं। अपना जो एशियन हार्ट इंस्टीट्यूट है डॉक्टर पांडा का, तो सेम थिंग। लीलावती है, लीलावती है, अपना जो होली फैमिली है, एवरीथिंग इज एग्जैक्टली द सेम, द लॉ इज एग्जैक्टली द सेम। मैं मानता हूं बीच में ऐसा हुआ था, जो डॉक्टर ढोने आप बात कर रहे हैं ना, बीच में ऐसा हुआ था। उसके बाद द गवर्नमेंट केम डाउन वेरी वेरी हेवीली ऑन ऑल दीस पीपल कि भाई हम लोग अपनी जमीन वापस ले लेंगे आपसे, क्योंकि जमीन तो आपको सब्सिडाइज रेट पे मिली है ना। यू आर एब्सोल्युटली राइट। तो अविरल मलिक साहब, मैं आपसे जानना चाहता हूं कि आप जो मर्जी कर लीजिए, मोदी जी जो मर्जी कर लें, भारतीय जनता पार्टी जो मर्जी कर ले, चाइना आपके साथ आ जाए, चाइना आपकी तारीफ करते, जब चाइना आपकी बुराई करता है तो आप बुरे हैं ही, जब चाइना आपकी तारीफ करता है तब और भी बुरे हैं, जब चाइना आपके साथ खड़ा हो जाता है तो आप और भी बुरे हैं सर। और ट्रंप साहब जब ये कहते हैं कि इंडियन इकोनॉमी डेड इकोनॉमी है, तो राहुल गांधी जी कहते हैं डेड इकोनॉमी। आज ट्रंप बोलता है कि इंडियन इकोनॉमी इज अ वेरी गुड इकोनॉमी, और हम दोनों देश जो हैं, बहुत बड़े बड़े देश जो हैं, दोनों महान देश एक दूसरे के साथ एग्रीमेंट पर आएंगे वगैरह वगैरह वगैरह, तब भी आप बुरे हैं। अविरल मलिक साहब, ये क्या है? अब आप जरा समझाएं मुझे प्लीज। जी नहीं, देखिए, जहां तक विषय एक तरीके से अडानी को फिर से ले आए थे, अंबानी को ले आएंगे, या अडानी अंबानी की जो चर्चा करते हैं, मैं समझता हूं कि इस चर्चा में इन्हें पढ़ना इसलिए नहीं चाहिए क्योंकि कांग्रेस पार्टी ने सबसे बड़ा जो पाप कर रखा है वो अडानी अंबानी चिल्लाने के बावजूद भी उन्हें कॉन्ट्रैक्ट्स देने का कर रखा है। एमओयू साइन इन्होंने कर रखे हैं, तेलंगाना की इनकी सरकार, रेवंत रेड्डी की सरकार ने अडानी के साथ एमओयू साइन कर रखा है, उसका इनके पास कोई जवाब नहीं है। और इन्हें छोड़िए, पी चिदम्बरम जो फॉर्मर होम मिनिस्टर, फॉर्मर फाइनेंस मिनिस्टर ऑफ इंडिया रह चुके, उनसे पीसी में जब पूछा गया उनके भी पास जवाब मौजूद नहीं था। बड़ा सवाल यह है, सुप्रिया स्नेत की तरफ उन्होंने माइक किसका दिया? और उसके साथ साथ जहां तक विषय है कांग्रेस पार्टी का, तो कांग्रेस पार्टी का जो डबल स्टैंडर्ड्स है वो सबको मालूम है, उसमें मैं जाना भी नहीं चाहूंगा। और पर्टिकुलरली जहां तक विषय है आज के समय का, आज के कालखंड का, तो आज विश्वगुरु भारत सबको दिख रहा है, और विश्वगुरु भारत जो इतना मजबूत है,
आज किसी में इतनी हिम्मत, किसी है इतनी हैसियत, इतनी औकात किसी की नहीं है। अब देखिए पूजा जी मुस्कुरा रही, मैं सोचता हूँ कि एग्री कर रही हूँ इस बात से। थैंक यू सो मच पूजा जी। एग्री नहीं, आप पे जहां हंस रहे तक सर विषय वो है कि कैसा अमेरिका झूठ का, बोल रहे हैं तो आप, इसलिए अमेरिका हंस की रहे हो आज कि आप कितना मजाक जैसी बात बोल रहे हैं, इसलिए हंस रहे, उनको मजाक लग रहा वो, इसलिए हंस रही, सहमति नहीं है उनके आपके साथ उनकी। चलिए चलिए, फिर चलिए। अगली बार मल्लिक से जी, हम भी आशा करेंगे जब अविरल आप मल्लिक बोलेंगे जी, तब हम हंसेंगे। मैं ये टॉपिक पे आता हूं अब। बिल्कुल बिल्कुल हम हंसेंगे जब आप बोलेंगे, अविरल कोई मल्लिक दिक्कत जी, नहीं। अभी आप हंसिए। अविरल मल्लिक जी, 3 इलेक्शन सर, एक कमीशन, मिनट सर, एक फॉर्मर इलेक्शन कमिश्नर, जिसमें कुरैशी साहब है, रावत साहब है, लवासा साहब है, उन्होंने आज के इलेक्शन कमिश्नर को कहा कि आप जो कर रहे हो गलत कर रहे हैं। राहुल गांधी जी से आप एफिडेविट नहीं मांग सकते, बिना एफिडेविट किए आपको जांच करना पड़ेगा। अगर 3 फॉर्मर इलेक्शन कमीशन कास्टिगेटिंग करंट इलेक्शन कमीशन, तो डेफिनेटली कुछ ना कुछ बहुत गलत हो रहा है आज के इलेक्शन कमीशन में। 3 फॉर्मर इलेक्शन कमीशन ने कहा कि राहुल गांधी जी पे एफिडेविट पूछना गलत चीज है, ही शुडंट हैव आस्क्ड। तो क्या ज्ञानेश कुमार गलत कर रहा है? डॉक्टर अविरल मल्लिक जी बोलिए। नहीं देखिए, पार्टिकुलरली ये वाली खबर मैंने नहीं देखी कि इन्होंने कहा कौन रिटायर्ड इलेक्शन कमिश्नर थे, ये खबर मैंने नहीं देखी। ये विषय पर्टिकुलर विषय मेरे संज्ञान में नहीं है। लेकिन हाँ, मैं ये भी देखना चाहूंगा वो इलेक्शन कमिश्नर कब कब रहे, किस किस कालखंड में रहे, कौन सा उनका टर्म रहा, और किस 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 समय में वो किसी अनुसार एक तरीके से वो अपॉइंटेड रहे। ये निश्चित रूप से मैं देखूंगा। लेकिन जहां तक विषय है उनके सवालों का, अच्छी बात है, कोई हर व्यक्ति को अधिकार है बोलने का, सवाल रखने का। और बहुत से लोग हैं जो रिटायर हो जाते हैं, उन्हें अधिकार है बोलने का, ऐसा नहीं है कि उन्हें अधिकार नहीं है, उन्हें अपने विचार रखने का पूरा अधिकार है। और जितना वो पीसी करें, जितनी प्रेस कॉन्फ्रेंसेस करें, उन्हें करनी चाहिए, कोई दिक्कत नहीं है। सब सम्मानित है हमारे लिए, कोई हमें समस्या नहीं है। लेकिन इलेक्शन कमीशन एक तरीके से स्वतंत्र संस्था है, उसको अपमानित नहीं किया जा सकता। और जो उस इलेक्शन कमिश्नर ऑफ इंडिया रह चुका, वो रिटायर होने के बाद अपने उसी पद का अपमान करे, ये भी पॉसिबल नहीं है, ऐसा कोई नहीं करता। और साथ साथ जहां तक विषय है जुडिशरी का, तो जुडिशरी का भी सम्मान करना चाहिए, मीडिया का भी सम्मान करना चाहिए, ईडी सीबीआई का भी सम्मान करना चाहिए। अब मुझे एक बीजेपी स्पोक्स पर्सन होने के नाते नहीं, एक नागरिक होने के नाते भी आपत्ति है कि ईडी और सीबीआई का अपमान किया जाता है, बिकॉज ऑफ आई एम अवेयर सिटीजन ऑफ इंडिया। तो एक जागरूक नागरिक होने के नाते मैं इस चीज की आपत्ति करता हूं कि मेरे देश की जो जांच संस्थाएं हैं, स्वतंत्र जांच एजेंसियां हैं, उनको अपमानित ना किया जाए, पुलिस प्रशासन को अपमानित ना किया जाए। आज डॉक्टर मल्लिक, क्या इलेक्शन कमीशन को राहुल गांधी जी के चार्जेस को स्यू मोटो एकदम इन्वेस्टिगेट करना चाहिए? खड़गे साहब ने कहा कि कर्नाटका इन्वेस्टिगेशन हैज रीच्ड अ रोड ब्लॉक, वहां पर रोड़ा डाल रहे हैं। इलेक्शन कमीशन मदद नहीं कर रहा है इन्वेस्टिगेशन का, बट रोड़ा डाल रहा है, रोड ब्लॉक्स डाल रहा है सब जगह। अविरल मल्लिक जी, राहुल गांधी जी ऑपोजिशन लीडर, क्या एटलीस्ट नाउ ज्ञानेश कुमार जी को इंडिपेंडेंट इंक्वायरी करना चाहिए? जी नहीं, देखिए जहां तक विषय इंक्वायरी का, इंक्वायरीज होती है, हर मुद्दे पे इंक्वायरी होती है। और इंक्वायरी तो हमारी सरकार में होती है, दूसरी सरकारों में कभी हुई नहीं इंक्वायरीज भी। और साथ साथ जहां तक विषय हमारी सरकार का है और इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया का, और पर्टिकुलरली इंडी अलायंस और कांग्रेस पार्टियों का है, ये कांग्रेस पार्टी समाजवादी पार्टी विपक्षी दलों का है, तो मैं समझता हूं बिल्कुल स्पष्ट है जिस तरीके से विपक्षी दल लोकतंत्र पे हमला कर रहे हैं, ये संविधान पे हमला कर रहे हैं, संविधान को समाप्त करने की आज भी साजिश रच रहे हैं, जब भी ये विपक्ष में है, ये स्पष्ट दिख रहा है। देखिए, फोर्थ पिलर से शुरू करते हैं। फोर्थ पिलर ऑफ डेमोक्रेसी है मीडिया। ये फोर्थ पिलर डेमोक्रेसी को, मीडिया को गोदी मीडिया कहते हैं। ये जुडिशरी को अपमानित करते हैं। जिस दिन इनके पक्ष में फैसला आ जाए उस दिन लोकतंत्र बच जाता है, जिस दिन इनके खिलाफ फैसला आ जाए उस दिन सब खत्म हो जाता है देश दुनिया में, सुप्रीम कोर्ट हो, हाई कोर्ट हो, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट हो। साथ साथ अब रही बात एग्जीक्यूटिव की, एग्जीक्यूटिव का तो अपमान करते ही है, वो तो सबको मालूम है। एग्जीक्यूटिव को किस प्रकार से अपमानित किया जाता है विपक्ष के द्वारा, पुलिस प्रशासन को एक तरीके से झूठे आरोप उनके ऊपर लगाए जाते हैं, वो जो बयानबाजी उनके लिए की जाती है। और साथ साथ अब बात आती है लेजिस्लेचर की। तो लेजिस्लेचर में अगर एक तरीके से बात कर ली जाए प्राइम मिनिस्टर की पोस्ट की, तो जो इस देश के प्रधानमंत्री हैं उनके लिए ही बोटी बोटी वाला बयान दिया गया था, और जिसने दिया था वो सांसद सहारनपुर है। तो ये इस प्रकार से चारों जो अहम पिलर्स हैं डेमोक्रेसी के, उन पे विपक्ष हमला बोल रहा है। और मैं समझता हूं इन चारों पिलर्स को, इस डेमोक्रेसी को बचाने की आवश्यकता है, प्रोटेक्ट करने की आवश्यकता है विपक्ष से। विपक्ष से, राइट। लेट मी गो अक्रॉस डॉक्टर पूजा मिश्रा। डॉक्टर पूजा मिश्रा, आप कुछ बोलने जा रही थी
जी बोलिए मैम प्लीज, आवाज आपकी आवाज अनम्यूट करें ना प्लीज। बिल्कुल। हाँ अब आ रही है जी, आवाज जी। राजीव जी अभी भाजपा के प्रवक्ता कह रहे थे कि जो ज्ञानेश जी हैं जिनका जो है अपमान किया जा रहा है इलेक्शन कमीशन का, अगर प्रश्न पूछना अपमान हो, मैं यही सोच रही थी आप लोग तो हमें बुला करके 7 दिन से बैठा करके पूरे 1 घंटे जब बारी बारी 1.5 घंटा अपमान करते हैं आपका। तो जी हाँ, फिर तो गजब का डेफिनेशन निकल करके आएगा कि जी, प्रश्न बिल्कुल। पूछना अपमान होने लग गया। बिल्कुल। इलेक्शन कमीशन से प्रश्न पूछने का अधिकार सबको है। बीइंग अ रेस्पॉन्सिबल सिटीजन ऑफ इंडिया यू टू हैव द राइट टू क्वेश्चन द इलेक्शन कमीशन। That's right. भाजपा के प्रवक्ता भी कर सकते हैं, कोई भी कर सकता है। उसके बाद में इन्होंने वो जो 3 फॉर्मर जो चीफ रहे इलेक्शन कमीशन के, उनकी बातों को नहीं सुना। उन लोगों ने प्रश्न नहीं उठाया इलेक्शन कमीशन पे, उनसे व्यू पूछा गया कि अगर जो है आप होते इनकी सिचुएशन में तो आप उस वक्त क्या करते, क्या करना चाहिए। तो उन्होंने बस अपना व्यू पॉइंट रखा कि हम जो है आपको ऑटो सुमो लेकर के अगर किसी एक व्यक्ति ने भी प्रश्न उठा दिया है तो इलेक्शन कमीशन की रेस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि उसको जाकर के वो क्रॉस चेक करे, आइडेंटिफिकेशन करे, उसके बाद में जांच के बाद में जो तथ्य उसको सामने ले आए। क्योंकि इलेक्शन कमीशन का काम सिर्फ और सिर्फ चुनाव कराना ही नहीं है, इलेक्शन कमीशन का काम ये भी है कि जो चुनाव करा रहे हैं वो कितना ट्रांसपेरेंसी के साथ में है, उस पे लोगों का विश्वास बना रहे। जिस कॉन्स्टिट्यूशन की आप बात कर रहे हैं उस कॉन्स्टिट्यूशन पे विश्वास कायम रखने की जो है बात की करने की जिम्मेदारी भी इलेक्शन कमीशन की होती है। अगर अपोजिशन आपसे क्वेश्चन कर रहा है विद द फैक्ट्स एंड डाटा तो आपको उस पर जांच करनी चाहिए। ये अपमान नहीं होता है प्रश्न पूछना, और देश के प्रधानमंत्री से प्रश्न पूछना, देश के सरकार से प्रश्न पूछना, देश से प्रश्न नहीं होता है, वो जो सरकार में सरकार से प्रश्न होता है। उसके बाद में आ जाते हैं, हम बात कर रहे थे कि जो है इनका नेक्स्ट सवाल क्या आ रहा था, मैं मिस कर जा रही हूँ। ईडी एंड सीबीआई मैम, ED and CBI Yes, नहीं, ma'am. press freedom index, he was talking about the press freedom, Also Godi media. जो Godi media, Godi media, the press freedom index डिटेरियोरेट हो रहा है। क्यों डिटेरियोरेट हो रहा है? आप अभी गोदी मीडिया की बात कर रहे हो, हम आपको पता होगा समाजवादी पार्टी कार्यालय में एक दिन हम लोग को बोला गया कि आप आइए, एक प्रोग्राम कर रहे हैं, all the spokesperson will be there and the chief minister will be there। we thought कि ये अचानक से मीटिंग क्यों बुलाई गई? we had a lot of thinking and in our mind कि क्यों बुला लिया गया अचानक से, किसने कहाँ पे क्या गलती की। जनरली यही होता है, जब अचानक से हमें बुलाया जाता है कि आज कोई नहीं लेगा डिबेट और बैठेंगे, तो हमें पता होता है कि हमें विजुअल दिखाए जाएंगे हमारे कि हमने गलतियां कहाँ पे की हुई है, वो बड़े से स्क्रीन में बैठा करके। पर जो है उस दिन क्या हुआ कि हम गए बैठे, और बैठने के बाद में हमें पता चला कि आज जो है कॉमेडियन आए हुए हैं एंड वो कॉमेडी करेंगे। एंड द थिंग इज दैट कि वो कॉमेडी करते वक्त अखिलेश यादव जी की भी मिमिक्री कर रहे थे। एंड वो अखिलेश यादव जी के अगर उनको जैसे होता नहीं निंदा करना या उस तरीके की जो उनकी थॉट है उसको भी रख रहे थे। इसको कहा जाता है कि ये जो है जो डेमोक्रेसी है ये जिंदा रहना चाहिए। और इनके यहाँ पे क्या होता है कि अगर आपने प्रश्न पूछ दिया, अगर आपने सटायर मार दिया और वो सटायर सरकार से प्रश्न पूछता हो, तो जहां पे आपने प्रोग्राम किया उसमें तोड़-फोड़ मचा दो, उस लोगों के ऊपर में FIR दर्ज कर दो। अगर आपने कार्टून बना दिया तो आपको जेल भेज दिया जाए। अगर ये हरकत कोई भी सरकार करती है तो इसका कॉन्स्टिट्यूशन का प्रोटेक्शन तो बिल्कुल नहीं हो रहा है, क्योंकि वो राइट देता है, अधिकार देता है कि जब तक आप कोई इलीगल गतिविधि नहीं कर रहे हो, देश को कोई हार्म नहीं पहुंचा रहे, तो आपको राइट है, आप क्वेश्चन कर सकते हो। तरीके से डिटोरिएट हुआ है, और जिनको आप कह रहे गोदी मीडिया कहा जाता है वो भी दिख रहा होता है सबको। तो पूजा मिश्रा जी, आर यू हैप्पी विद द वे मेनस्ट्रीम मीडिया इज फंक्शनिंग राइट नाउ? द मेनस्ट्रीम मीडिया, कॉर्पोरेट मीडिया आज की तारीख में जिस तरीके से काम कर रहा है? नहीं, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। मैं डिबेट करती हूँ तो मैं बोलती हूँ आप कोई भी एजेंडा चलाओ, लेट मी स्पीक, allow me to speak, that's only I want। whenever a guest coordinator calls me, I'm like, just make it very clear with your host that the host shouldn't say कि हमें ऐसे प्रवक्ता की जरूरत नहीं, then I'm not gonna join your debate anyway। और हमें होस्ट को बोलो कि मौका देंगे बोलने के लिए। It doesn't matter whatever your agenda you are running, I don't have anything to do with that कि आप किस प्रेशर में कैसे रन कर रहे हैं। और इस फैक्ट को कोई डिनाई नहीं कर सकता है कि ये ऐसा चल रहा है, और हमें पता होता है कि आप लेकर के जाएंगे। तो हम चाहते हैं कि अगर हम वॉइस हैं, आप अगर हमें इस पे बिठा रहे तो आई वोंट बी यूटिलाइज एज अ प्रॉम्प्ट कि प्रॉम्प्ट बैठा दिया गया हुआ है, रिप्रेजेंटेशन हो रखा है। आई एम लाइक, गिव मी चांस, if you're not giving me chance and you are trying to use me as prompt, I won't be utilized as prompt। हमें बोलने दीजिए, आपको जो चलाना चलाते रहिए।
पर ये चल रहा है। आप जैसे बैठा करके सवाल पूछ रहे हैं, सबसे पूछे एक पॉइंट ऑफ व्यू सुने, लेकिन ये फैक्ट है कि गोदी मीडिया जिनको बोला जा रहा है कम बोला जा रहा है, तो वो उससे ED ज्यादा and डिजर्व CBI करते मैम। हैं। मेरी जुबान गंदी होती नहीं तो मैं गंदी करूंगी नहीं, पर डिजर्व ज्यादा करते हैं। ED and CBI मैम, सेम थिंग। कन्विक्शन रेट कितनी है? 0.45%। 0.45% कैलकुलेट 0.45% together। और 95% जो है अपोजिशन लीडर के ऊपर में चार्जेस इम्पोज किए गए हुए हैं। तो ईडी और सीबीआई कैसे फंक्शन कर रही है? इतने लंबी लिस्ट है जो है अपोजिशन में जब रहे हैं उनके ऊपर में केस किया गया। आपको पता होगा भी जो है वाइस प्रेसिडेंट का इलेक्शन हुआ और रेड्डी जी ने जो है क्यों अपने 11 जो है सांसदों के साथ में क्यों सपोर्ट किया, आपको पता होगा। अलग होने के बाद में फिर उनके ऊपर में जो है चार्जेस किस तरीके के आए, फिर उनको जाकर के एनडीओ करना पड़ा। आपको पता होगा कि जो है इनके अलाइज ने क्यों दूरी बना दिया। आप सोचिए कि उड़ीसा में उनकी सरकार भिड़ी हुई है बिजू पटनायक जी की, पर फिर भी उनकी हिम्मत नहीं पड़ रही है कि वो जाकर के वोट कर सके, उन्होंने डिस्टेंस बना दिया। क्यों किया हुआ है? ये फैक्ट है कि सरकारी मशीनरीज का मिसयूज किया जा रहा है। अगर आप चले जाएंगे कि बहुत बैक जाना चाहते हैं, तो मुझे लगता है कि बहुत बैक में जो बुरा हुआ हिस्ट्री हम लोग पढ़ते हैं ताकि वो रिपीट ना हो, और प्रेजेंट में अगर वैसा हो रहा है तो ये कह सकते हैं डेमोक्रेसी बोल रहे हैं कि डेमोक्रेसी को खत्म करना चाहते हैं। यही डेमोक्रेसी को खत्म करना होता है कि जब आप सुनना नहीं चाहते हैं। आईपी सिंह a close confidant of अखिलेश यादव जी कह रहे हैं कि he says Nepal like situation will happen in India, Nepal like protest will happen in India। क्या समाजवादी पार्टी विश कर रहे हैं ऐसे वायलेंट एजिटेशन यहाँ पर हो, प्रोटेस्ट हो, पार्लियामेंट चलाया जाए, हर चीज वो एक वायलेंट तरीके से अपहीवल हो? Now what are you trying to say? Samajwadi Party is supporting this kind of violent protest that's happening in Nepal and India। is one of the spokesperson too from the Samajwadi Party। तो आप कह रहे हैं कि ये जो प्रोटेस्ट हुआ है नेपाल में, जिसको गवर्नमेंट शो कर रही थी कि दिस इज द जेनजी प्रोटेस्ट, ये प्रोटेस्ट कर रहे हैं क्योंकि प्लेटफॉर्म, सोशल प्लेटफॉर्म को बैन किया जा रहा है। बट रादर जो है उसकी सच्चाई ये थी, वहां पे करप्शन को लेकर के प्रोटेस्ट चल रहा था, मास प्रोटेस्ट। जो अनएम्प्लॉयमेंट था उसको लेकर के प्रोटेस्ट चल रहे थे। वो प्रोटेस्ट धीरे धीरे ग्रो करते हुए आकर के इतना बड़ा एजिटेशन हो गया, जिसमें आपने देखा कितना गंदा दौर देखने को मिला। तो हम कह रहे हैं कि जब अगर ये जो भारत देश है, यहाँ पे आपको जो डेमोक्रेटिक राइट है, आपको यूथ को बोलने नहीं दिया जाएगा, तो डेफिनेटली दैट एजिटेशन विल ग्रो। अगर आपसे सवाल पूछा जा रहा है सरकार, और सरकार आपको सवाल पूछने नहीं देगी, अगर कॉमेडियन कोई कॉमेडी करते हो, प्रश्न पूछ रहा है सरकार से, वो उसको कॉमेडी नहीं करने देगी, तो आप सोचिए कि ये एजिटेशन ग्रो होता चला जाएगा। मैंने आपको बोला ना कि कितने सारे अभी वाइस प्रेसिडेंट के इलेक्शन में उनकी हिम्मत नहीं पड़ी उन पार्टियों की कि वो आकर के इनके अगेंस्ट में वोट कर दे। उन्होंने बल्कि वोट से दूरी बनाना ज्यादा सही समझा रादर देन गोइंग अगेंस्ट दी गवर्नमेंट। तो अगर इस तरीके से चलता रहेगा कि आप वॉइस ही नहीं सुनेंगे, अगर आपको पता नहीं उत्तर प्रदेश में एबीवीपी के जो प्रोटेस्टर्स थे उनके ऊपर में लाठीचार्ज किया गया, और कितनी गंदी तरीके से किया गया कि 15-20 पुलिस वाले घेर करके मार रहे। क्यों? क्योंकि एक प्राइवेट यूनिवर्सिटी है, वहां पे करप्शन चल रहा था, उसके अगेंस्ट में प्रोटेस्ट कर रहे थे, और प्राइवेट यूनिवर्सिटी की कितनी हैसियत है तो उसको प्रोटेक्ट करने के लिए लाठीचार्ज कर दिया गया। उसके बाद में अब जाकर के हो रहा है कि नहीं, इसको हटाया जाएगा, उसको हटाया जाएगा, इस पे जांच बिठाई जाएगी। तो जब आप यूथ के आवाज को, जब आप मीडिया के आवाज को, जब आप जो डेमोक्रेटिक जो राइट्स होते हैं उनका हनन करेंगे, तो देयर इज प्रोबेबली कि ऐसे एजिटेशंस होंगे। और इंडिया में ऐसा नहीं कि नहीं हुआ है, ऐसे बहुत पहले, बस इतना मेजर नहीं हुआ है। जैसे हमने क्या देखा, अगर मणिपुर में देखा, नेपाल कंपेयर किया जाए, नेपाल और इंडिया को कंपेयर करते हैं ना, अगर श्रीलंका और कंपेयर करते हैं ना, तो देयर आर द स्टेट्स वेयर वी आर सीइंग दिस सिचुएशंस। क्या हुआ वहां पे मणिपुर में? मणिपुर में बहुसंख्यकवादी तो हुआ, उसके बाद में वो कितना मेजर एजुटेशन चला गया। और ऐसा नहीं, मणिपुर नॉर्थ ईस्ट के बहुत सारे स्टेट में होता है, हमें बहुत गंदे गंदे एजुकेशन देखे हुए हैं। तो जब आप डेमोक्रेटिक राइट का हनन करेंगे, देन यू मस्ट बी रेडी फॉर दिस काइंड ऑफ एजुटेशन। एंड इफ वी आर विटनेसिंग अराउंड अस, then we need to be alarmed and the government need to be alarmed. This is alarming. You should allow the youth, you should allow the democratic right of people to exercise it. BNK, do you think the press is free in India? Hey, yes ma'am, you were saying something. Please finish. Pooja Mishra ji, आप कुछ बोल रहे थे. Please finish. मेरी 8 बजे से दूसरी जगह डिबेट है, so I won't be able to hear anyone. Right, thank you very much, Dr. Pooja Mishra. Great pleasure having you on with us. So nice of you. Namaskar. Thank you so much for being with us. BNK, the press is free, right? BNK, talking to you. Yeah. I'm hearing. We've got a free press, right? Free, objective, wonderful press, very balanced. Yes. Yes? Right. No, we have a press in the sense that we have today, unfortunately, the press is also largely divided. एक तो ये गोदी मीडिया हो गया,
एक दूसरी जो इंडिपेंडेंट सो कॉल्ड दूसरी वाली कौन सी है इंडिपेंडेंट, कौन सी है? उसमें जो है काफी सारा टोटली एंटी बीजेपी एंड टोटली प्रो कांग्रेस स्टैंड भी उसमें दिखाई देता है। इन मेनस्ट्रीम मीडिया में बैलेंस मेन स्ट्रीम में नहीं, इंडिपेंडेंट यूट्यूबर्स वगैरह जो मेन स्ट्रीम तो खैर, वो अलग है। आई एम टॉकिंग अबाउट कॉर्पोरेट मीडिया, सैटेलाइट चैनल्स में आज की तारीख में डॉक्टर ढोने बता दें या बीएन के साहब आप बता दें कौन सी ऐसी मीडिया है जो कि बैलेंस्ड है? मुझे एक नाम बता दे यार। नहीं कोई बैलेंस नहीं है, कोई एक ही तरफा है। और दे वर्क ऑन अ टूल किट, क्योंकि अगर टूल किट की जो बात होती है ना, ये लगभग सच है। क्योंकि आप एक कवरेज का ट्रेंड देखोगे, एक चैनल में शुरू होती है ना, सारे चैनल में सेम ट्रेंड चलता है, सिमिलर हेडलाइंस, वेदर इट इज ए फ्रेंडशिप विद चाइना कंसर्न, वेदर इट इज ट्रम्प्स कॉल। अच्छा एक मजे की बात बताता हूँ आपको आरके भी, ये मोदी जी का रिएक्शन जो आया था ऑन ट्रम्प, he did not react on Trump's comment directly on Trump's Twitter ID or what his social media platform. He commented on a wire agency's report. उन्होंने ये नहीं बोला कि थैंक यू ट्रम्प यू हैव डन दिस, उन्होंने ये न्यूज रिपोर्ट के ऊपर उन्होंने कमेंट किया है। सो दैट इज आल्सो आई मीन टू बी नोटेड my lord. बीएन कुमार जी, आप मणिपुर सब लोग चिल्ला रहे थे, दोने साहब भी चिल्ला रहे थे मणिपुर कब जाएंगे, प्रधानमंत्री कब जाएंगे। मणिपुर जा रहे हैं 13 तारीख को प्राइम मिनिस्टर मणिपुर जा रहा है, एंड देयर इज पॉसिबिलिटी ऑफ इमेंस पीस का पैगाम लेके जा रहा है, और प्रोबेबली मणिपुर इज गोइंग टू बी ट्रांसफॉर्म टू अ पीसफुल स्टेट नाउ। कैसे देख रहे हो? इज इट अ वेरी यू कैन से डिसाइसिव डिसीजन ऑफ द प्राइम मिनिस्टर टू गो टू मणिपुर नाउ? बीएन कुमार जी, I think he should have done this earlier. Yes, we lost too much of time. We lost so many lives. The distress among the communities in Manipur has increased. The gap has widened. Hopefully, the permission will go soon. People have been asking for it. People have been questioning कि why you are not going there. उसका जवाब तो नहीं है अभी तक। ठीक है, जा रहे तो जाने तो जाना जरूरी है। It's much what you call expected था, and it's delayed beyond the imagination. जाना जरूरी है। He has to make amends there. मणिपुर के कार्यक्रम वो गुवाहाटी में बैठ के करते हैं, that is bad ना, so he should have gone to Manipur and done that. तो ये सारी चीजों को भी ध्यान में रखना चाहिए, and yes he should go to Manipur, and it's a welcome step, but it is a bit delayed. दोने साहब, आखिरकार मणिपुर जा रहा है प्रधानमंत्री, अभी आपके पास कोई इश्यू नहीं है। चर्चेस जला, 300 चर्चेस जला डाले, 7,000 घर को जला डाले, 40,000 लोग डिस्प्लेस्ड हो गए, ये आंकड़े थे। अभी आप चिल्ला नहीं सकते कि प्राइम मिनिस्टर नहीं जा रहा है मणिपुर, कब जाएंगे। जा रहा है 13 सितंबर को, 13 तारीख को जा रहे हैं दोनों साहब। सर ऐसा है कि जब कोई एक आदमी भी मरा तो उसी वक्त प्रधानमंत्री ने उस पर तत्काल कार्रवाई करनी चाहिए। हम नहीं बोल रहे कि कोई एक आदमी मर गया तो प्रधानमंत्री ने उस स्टेट में जाना चाहिए, लेकिन उन्होंने उसके लिए तत्काल अपनी जो मशीनरी है, सरकारी यंत्रणा है, उसको लगा देना चाहिए था। लेकिन ऐसा नहीं हुआ, और आपने जो बताया इतना नुकसान हुआ, इतने लोग मर गए, कुछ लोग बेघर हुए, तो ये जो सब लॉस हुआ इसकी जिम्मेदारी किसकी है? अभी जा रहे हैं, जब लोगों के जख्म अभी भरते हुए आ रहे हैं, तो आप उनके जख्म को फिर से मरहम लगाने के लिए जा रहे हैं कि उनके जख्म तो भर गई। तो ये बहुत लेट हो गया सर, यानी अब लोग जो है इतना लेट हो गया, इतना नुकसान हो गया, इतने लोग मर गए, और वो जो लेडीज है वहां की, उनको सड़कों पे नंगा घुमाया। इतना ये बेशर्म की हद हो गई सरकार की कि अब इतने लेट जा रहे हैं। और अभी वो भी ऐसा है कि जब इंटरनेशनल मीडिया में सब चीजें आ रही तो दुनिया में उनको तो भाई हिंदुस्तान के लोगों से, हिंदुस्तान का मीडिया तो उनके जेब में है, हिंदुस्तान के लोगों से उनको कुछ लेना देना है नहीं। अब दुनिया में नाम खराब हो रहा, तो दुनिया में अपना नाम बचाने के लिए वो जा रहे, मणिपुर जा रहे। कोई ऐसा लोगों के लिए हमदर्दी है इसलिए नहीं जा रहे। सर वहां पे प्रॉब्लम थी, अब इतना लेट हो रहे सर, मीडिया ने तो उनको जवाब पूछना चाहिए कि इतना लेट क्यों जा रहे हैं। अब इसके पहले क्या कि बिहार में जा रहे हैं, वहां जम्मू कश्मीर में लोग मर गए, और आप रैली कर रहे हैं वहां पे, और वहां से रैली करके हिंदी में बता रहे हैं, हिंदी में दुनिया को बता रहे, हिंदी में। दुनिया को इंग्लिश में बताना चाहिए कि मैं नहीं छोड़ूंगा, एक का बदला लूंगा, ये इंग्लिश में बोलना चाहिए। हिंदी में क्यों बोल रहे हैं? सर गूगल ट्रांसलेटर है सर, हिंदुस्तान के बिहार के लोगों को में ट्रांसलेट हो जाता है। कि आप मुझे वोट दो, मैं बदला लेने वाला हूँ। सर
सर डॉक्टर ढोने साहब, हमको इनफैक्ट कंप्लेंट आई थी यूएसए से कि हम लोगों का जो शो है उसके ऊपर वो एआई की कोई अंग्रेजी आवाज आ रही है। हम लोगों ने मतलब जैसे डॉक्टर ढोने आप बोल रहे हैं, कोई अंग्रेज बोल रहा है आपके ऊपर, तो सो वी हैव टू स्टॉप दैट ट्रांसलेशन। तो मैं मीडिया के बारे में आपसे पूछ रहा हूं सर, बार बार ये कंप्लेंट आती है, क्या असल में आपका तजुर्बा ये रहा है कि जो हमारा मेन स्ट्रीम मीडिया, इतने बड़े बड़े चैनल है सर, मतलब नाम है उनका हर जगह पे, न्यूज़पेपर जो प्रिंट मीडिया है, प्रिंट मीडिया अभी भी अच्छा है जी, प्रिंट मीडिया में प्रॉब्लम नहीं है जी हाँ, ये जो चैनल है इलेक्ट्रॉनिक्स मीडिया, ये सब बिके हुए हैं, पूरे 100% बिके हुए हैं। उसमें कुछ जो अब साहब ने बताया, यूट्यूब जो है, यूट्यूब चैनल, यूट्यूबर जो है, ये जो लोग चलाते हैं, आप जो है, आप निष्पक्ष चैनल है, आप बीजेपी की पक्ष भी लेते हैं, कांग्रेस का भी, सभी पार्टियों के लेते हैं, तो ऐसे कहाँ है अभी नहीं है, लेकिन लोग यूट्यूबर को पसंद कर रहे हैं। मैं सिर्फ एक चीज नहीं जानना देख चाह रहे रहा लोग, हूं सर, मेरा एक सवाल है आपसे, बाकी लोग नहीं देख रहे सर, ये लोग। सर मेरा एक सवाल है आपसे भी और बीएन के हिसाब से भी, जब भी मतलब आपको वक्त मिले, अगर आप अगली बार किसी मेन स्ट्रीम चैनल में जाए ना, बड़े चैनल में जाएं, मतलब जिनका बजट होता है 5,000 करोड़ का, 3,000 करोड़ का, 2,000 3,000 करोड़ का जिनका बजट होता है, उनको ये पूछो यार कि हिंदुस्तानी फौज ने कराची में तिरंगा झंडा मतलब लहरा दिया था, तो वो झंडा कहाँ गया? लाहौर के अंदर हम पहुंच गए थे, तो वो कहाँ गया झंडा? मतलब मैं ढूंढ रहा हूं उसको, वो झंडा मिल नहीं रहा मुझको। डॉक्टर ढोने, आपको मिला क्या? हमारी कौन सी टुकड़ी जो है हमारी फौज की, मैं एयरफोर्स की बात नहीं कर रहा हूं, इंडियन आर्मी वाज सपोज्ड टू हैव गॉन इनटू लाहौर, और लाहौर में वी वर सपोज्ड टू हैव कैप्चर्ड लाहौर, मतलब लाहौर तो हम लोगों ने पता कर लिया था, तो वो कहां गया सर? वो डॉक्टर ढोने आपको मालूम पड़ा? सर ऐसा है कि उस वक्त अगर बोलते थे कि ये झूठ बोल रहे हैं, कोई अपनी सेना लाहौर तक गई नहीं, कराची तक नहीं गई, हम तो देशद्रोही साबित हो जाते थे। सर एयरफोर्स ने अटैक किया हर जगह पे, उसमें कोई नहीं, वो तो एयरफोर्स तो अटैक करती है, एयरफोर्स ने सब किया है जी, लेकिन ये मोदी सरकार को क्रेडिट देने के लिए ये लोगों ने ऐसा इतना खराब काम किया कि लोग उसके बाद में लोग भाजपा मोदी से भी नाराज हो गए, भाजपा सरकार से भी नाराज हो गए, मीडिया पर से तो उनका विश्वास ही उठ गया। लोगों ने सपने देखे थे कि भाई मीडिया बोल रहा है, लाहौर तक गए, कराची तक गए, अब पाकिस्तान के 2 टुकड़े हो गए और अपना पाकिस्तान पे कब्जा हो जाएगा। हम भी बहुत खुश हो गए थे कि सही में ऐसा हुआ तो बहुत अच्छा है, पाकिस्तान का नामो निशान मिट जाए तो बहुत ही अच्छी बात है, हमेशा की जो अपनी को तकलीफें वो दूर हो जाएंगी, हम भी सोच रहे थे। बाद में मालूम पड़ा कि मोदी जी ने तो ये युद्ध खत्म कर दिया, सीज फायर कर दिया, तो लोग तो नाराज हो गए, पूरे हिंदुस्तान के लोग नाराज हो गए, यार अब जीत रहे थे, पाकिस्तान खत्म हो रहा था, आपने सीज फायर क्यों कर दिया? तो उस पे तो लोग नाराज हो गए हिंदुस्तान के। और जो मीडिया दिखा रहा था कि ऐसा हो गया, बाद में मालूम पड़ा कि ऐसा हुआ ही नहीं है, तो मीडिया पर से भी विश्वास उठ गया और बीजेपी और मोदी पर से तो विश्वास उठ गया। जो 56 कुनबी सर्टिफिकेट इशू हो रहा है 17 तारीख से, मोदी जी का बर्थडे, मोदी साहब का बर्थडे है 17 सितंबर से। पूरे कलेक्टर मराठवाड़ा में बोला गया है कि आपको 17 तारीख से लेकर 2 अक्टूबर तक आपको सब कुनबी सर्टिफिकेट मराठाओं को इशू करना पड़ेगा, और इसको एक इवेंट बना रहे। क्या आपको लग रहा है कि इवेंट बना रहे कि जब ऐलान सीएम ऑफिस से जाता है कलेक्टरों को कि कुनबी सर्टिफिकेट 17 तारीख मोदी जी के बर्थडे से शुरुआत कीजिए? कैसे देखते हो? क्या विजय मराठाओं का? ओबीसी भुजबल साहब नाराज है, किस प्रकार से पूरे सीन कैसा देखते हो आप? सर बोलिए दोरे साहब। भुजबल साहब कोई नाराज है नहीं, भुजबल साहब को बोला गया कि आप ऐसा बोलो कि मैं नाराज हूँ, सरकार में रहते हो कैसे नाराज रह सकते हो? वो तो ये दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि मराठा को सही में आरक्षण दिया इसलिए मैं नाराज हूँ, ताकि मराठा लोग खुश हो जाए कि सही में मराठा को न्याय मिला। ये दिखाने के लिए वो एक कठपुतली की तरह इस्तेमाल हो रहे हैं भुजबल साहब बहुत बड़े नेता है, लेकिन उनको मजबूरी है, उनको तो मंत्री ने बनाया था, बाद में बीजेपी ने बोला उनको लेना जरूरी है, क्योंकि बीजेपी का जो नया क्राइटेरिया है कि जो भी जितना करप्ट वो उतना बीजेपी के करीब, तो इसलिए उनको ले लिया बीजेपी ने कि नहीं, अरे 70,000 करोड़ वाला है, ये बहुत बड़े इन मनी लॉन्ड्रिंग के इसमें फंस गए थे, भुजबल साहब बहुत बड़े घोटाला किया, तो ऐसे घोटालेबाज लोग तो उनको जरूरी है, तो इसलिए उनको बोला बीजेपी ने ले लो, तो उनको मंत्री बनाया। अब ये बीजेपी के निर्णय के खिलाफ कुछ कर सकते हैं क्या? देखिए, मराठों को कोई रिजर्वेशन मिलेगा नहीं, ना कुनबियों के सर्टिफिकेट मिलेंगे, ये झूठ बोला है सरकार ने, और जरांगे साहब ने इसीलिए इस बात को अभी मान लिया क्योंकि कोर्ट का भी आदेश था, और माहौल खराब न हो
और कोर्ट का आदेश के बावजूद भी अगर रहते थे तो वहां पे बहुत अफरा तफरी होती थी, लोग हो सकता है कि कुछ लोग उसमें मारे जाए, सरकार सख्त कार्रवाई करती थी। तो इसीलिए उन्होंने बड़े होशियारी से किया, तो उन्होंने जो किया वो सही किया, कोई गलत नहीं किया। जरांगे साहब ने वक्त की नजाकत को देखते हुए निर्णय लिया, लेकिन उनको भी मालूम है तो ये कि जीआर क्या है होने सर? वाला नहीं है। ये जो गवर्नमेंट रेजोल्यूशन निकला है, ये गवर्नमेंट रूलिंग है या रेजोल्यूशन है? मुझे तो अभी तक ये मालूम नहीं पड़ा। इज इट अ गवर्नमेंट रूलिंग और रेजोल्यूशन? आई एम नहीं नॉट श्योर। नहीं, हाँ Is it a government ruling or is it a नहीं, government resolution ही है, उसमें resolution ही There's है। a big difference. रेजोल्यूशन ही है। रेजोल्यूशन है तो हाँ। so which means अभी तक रूलिंग आने वाली है, अभी रूलिंग आई नहीं है, कहने का मतलब ये हुआ। तो आप ये बताइए कानूनन ये ठहरेगा या नहीं ठहरेगा? बता। सर उन्होंने क्या बोले है उसमें कि वो किसी के पास, ये तो देखिए जीआर तो निकाल दिया, लेकिन वो प्रोसीजर तो वैसी पुरानी है जी। कि आपको कास्ट सर्टिफिकेट चाहिए, तो आपका कोई वंश का अगर कोई है पुराना, कोतवाल बुक की नकल मिलती है, उसमें किसी का कुंभी सर्टिफिकेट मिलता है, तो उनको कुंभी सर्टिफिकेट तो वैसे ही मिलेगा। एक बात जो पुरानी जो चल रही है प्रोसीजर, वो हिसाब से ही मिलेगा। अभी इन्होंने ये डाल दिए कि उस गांव में कोई रहता है कि नहीं रहता है, तो उस गांव का रहवासी है कि नहीं है, इसका एफिडेविट कौन देगा? उस गांव का जो रहवासी है वो बोलेगा कि हाँ मैं इनको जानता हूँ, ये हमारे गांव के है, इतना ही उसमें दिया है। बाकी कोई प्रोसीजर में कोई ऐसा अलग किया नहीं है। और मराठा को आरक्षण मिलना, वो कुछ का सर्टिफिकेट मिलना बहुत मुश्किल है। और आपने जो बताया कि सोशली जो बोलते हैं लोग कि मराठा सोशली बैकवर्ड नहीं है, मराठा सोशली बैकवर्ड भी है, सिर्फ अछूत नहीं था, क्योंकि मराठा समाज खेती करता है, उनके हाथ से जो खेती का जो आया है, उत्पादन हुआ है, जो गेहूं हो गई, ज्वारी हो गई, सब्जी हो गई, वो खाना है। इसीलिए उस वर्ण व्यवस्था के जो मालक थे उन्होंने उनको छूट दिए थे कि नहीं हम आपको अछूत नहीं मानेंगे, क्योंकि इनको अगर मराठा माली तेली को अछूत मानेंगे तो फिर खाना कैसा खाएंगे, तो खाने के वादे होते थे, इसलिए उनको सहूलियत दी गई थी। हालांकि वो शूद्र वर्ण के हैं, और ये जो है जिनको अछूत कहते हैं वो अति शूद्र वर्ण के हैं। ये हालांकि बाकी ओबीसी तो अब मराठा हो गए, एजुकेशन चल माली रही हो है। गए। महात्मा फुले को पुणे में, सर महात्मा फुले जो थे उनका जो ब्राह्मण दोस्त है, उनकी शादी में गए थे, उनको शादी के जो जा रही थी, जो रैली जा रही थी, उसमें से उनको बाहर कर दिया कि अछूत का लड़का कैसा क्या आ गया। जी। तो ये तो हकीकत है, मराठा हो या माली हो या अछूत लोग है उनकी नजर में। सिर्फ इनको सहूलियत दिए थे कि भाई आपके सब्जी है, आपका अनाज है, वो खाएंगे, इसीलिए ठीक है आपको हम अछूत नहीं मानेंगे। और जब मुगलों से लड़ने की जरूरत हो तो आपको इस्तेमाल करेंगे, आप कुर्बानी दीजिए अपनी। बस बस वैसे ही है। क्या बात हाँ। है। बीएन कुमार साहब, मैं पूछना चाहता हूँ, ये जो कांग्रेस सर, का इसमें आंदोलन है, Oh, you wanted to say something. Okay, जी, बोलिए। पानीपत में बोले मराठों की हार हुई, पानीपत में मराठों की हार हुई। जी। तो पानीपत में मराठे कौन थे नेता उस वक्त? पेशवा थे। जब पानीपत की लड़ाई हुई तो किसके नेतृत्व में हुई? पेशवाओं के नेतृत्व में। हारे कौन फिर? पेशवा हारे ना, जी। लेकिन हारे बोलते मराठा। पानीपत में मराठ्यांचे पतन झाले, पानीपत झाले, मराठे हार गए बोल रहे। और अटकेबार झंडे किसने लगाए? बोले पेशवाओं ने लगाए। तो ये तो इतिहास के जो है ना, कांग्रेस के वक्त भी जो इतिहासकार थे सर, यही लोग थे, इन्होंने सब गलत इतिहास पढ़ाया। और कांग्रेस की उस वक्त गलती ये हुई थी कि वो इतिहासकार कौन अपना कौन पराया ये देखा नहीं, और जो गलत इतिहास जो चलाया वो चलते आया। जी। बीएन कुमार जी, क्या कांग्रेस का जो आंदोलन है, वोट चोर गद्दी छोड़, वोट चोर गद्दी छोड़, ये सक्सेस कभी हो पाएगा? किस पर आप एक इंडिपेंडेंट जर्नलिस्ट हो, इंडिपेंडेंट पॉलिटिकल ऑब्जर्वर हो, किस प्रकार से आंदोलन देख रहे हैं? वोट चोरी, बीजेपी का कहना है ये घुसपैठियों को बचाने के लिए ये आंदोलन चल रहा है बिहार में। बीएन कुमार जी, ये बीजेपी ने खुद ने भी तो आरोप लगाए थे ना कांग्रेस के ऊपर कि क्या रायबरेली अमुक 5-6 स्टेट के ऊपर भी काफी सारे हुए थे। आपके खेरे के भी पवन खेरा साहब के भी 2 ईपीएससी कार्ड्स हैं। ये सारे अनुराग ठाकुर ने सारे एलिगेशन तो लगाया था। मतलब उन्होंने माना कि ये इलेक्शन सिस्टम में वोट इलेक्टोरल रोल्स बनाने की सिस्टम में, कार्ड्स इश्यू करने की सिस्टम में घोटाला तो है ही। बीजेपी ने तो माना है इधर एक तरफ से इनडायरेक्टली। लेकिन अभी अगर इलेक्शन कमीशन को प्रूव करना है, एफिडेविट मंगवाने का है,
राहुल से भी मंगवाओ और अनुराग ठाकुर से भी मंगवाओ ना कि आपके पास प्रूफ क्या है, नंबर 1। नंबर 2, इसके ऊपर इन्वेस्टिगेशन होने की बहुत जरूरी है। अभी राहुल गांधी ने खुद ने कहा एक छोड़ के अभी 100 सीट भी और ऐसे इस तरह के हैं जहां पर घोटाला हो सकता है। ये सारी बातें तो ठीक है, वही एक तो पॉलिटिकल है, दूसरा अगर वो प्रूफ निकाल के बताएंगे उसके ऊपर इन्वेस्टिगेशन होना बहुत जरूरी है। सक्सेस होगा नहीं होगा ये तो आगे की बात है, और इलेक्शन कमीशन तो इसको मानने वाले है ही नहीं है, क्योंकि इट इज picked the election commission picked up by the government with a 2-1, not only 2-1 but just majority of 2. कांग्रेस ने इसको तो भाग ही नहीं लिया था, और the way the process of election commission's selection is also raises a lot of questions. Ultimately, I think this issue will go to the court. Court will have to decide, like it happened in the so-called coal scam and 2G scam. I think unless the courts intervene, nothing is going to happen in this country. आरएसएस धोने साहब ने कहा पूरे देश में होना चाहिए एसआईआर। हम लोग इलेक्शन कमीशन के साथ है, पूरे देश में एसआईआर करो, आरएसएस का कहना है अंबेडकर जी का। धोने साहब तो करो, ठीक है ना, करो, लेकिन ये जो जानकारी क्यों छुपा रहे? अभी महाराष्ट्र की जो विधानसभा के वक्त की जो जानकारी है, इतने वोटर थे, छुपा दिए, क्यों छुपा रहे? आप करो, वो भी करो, और पूरी जानकारी इलेक्शन कमीशन ने हटा दी है जानकारी। अब हम मांग रहे हैं, हम भी मांग रहे हैं कि जानकारी है क्या, तो जो लोकसभा के वक्त में जो थी वही है, उसके बाद में हटा दिए उन्होंने। राइट, विधानसभा के वक्त में क्या वोटर थे वो हटा दिए उन्होंने। डॉक्टर ढोने, आपको आपसे विदा लेने के पहले, एंड थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग अस सर। डॉक्टर ढोने, ये बताएं कि ये मैं आपसे पूछना चाह रहा हूं, क्योंकि ये सवाल जो है काफी देर हम पूछ रहे हैं लोगों से। मोहन भागवत जी एक चौथी या पांचवी बार बोल चुके हैं कि जितने हिंदू परिवार हैं भारत में, उनके कम से कम 3 बच्चे होने चाहिए, ऐसा उन्होंने कहा है। और उन्होंने ये भी कहा है कि अगर आप 3 बच्चे नहीं करेंगे तो जो उनका इशारा मुसलमानों की तरफ है कि वो मुसलमान जो हैं वो मेजॉरिटी में आ जाएंगे आगे चल करके 50 साल में या 60 साल में, ऐसा करके बोल रहे हैं। कुछ कहना चाहेंगे इस विषय में आप? सर ऐसा है, सबसे पहले तो उन्होंने सलाह देनी चाहिए उनके स्वयं सेवकों को कि आप शादी करो, और शादी करके उन्होंने खुद ने भी शादी करनी चाहिए थी, योगी आदित्यनाथ ने भी शादी करनी चाहिए, मोदी जी ने भी 3 बच्चे पैदा करने चाहिए थे जी। तो सबसे शुरुआत तो इन्होंने करने क्यों ना, कि जो उनके नेता है कि क्यों नहीं किए भाई, आप उनको कम से कम डांटिए आप कि आपने गलती की है, मोदी जी ने गलती की है, भाग गए शादी करके, उस बहन को छोड़ दिया वैसे ही, और खुद मजे से जिंदगी जी रहे हैं, और उसको तो रिक्शा से जाना पड़ता है, ये तो बुलेट प्रूफ कार में जाते हैं। तो उनके स्वयं सेवकों को उन्होंने बोलना चाहिए कि सबसे पहले कि आप शादी करो, 3-3 बच्चे पैदा करो। ये तो नहीं बोल रहे ये लोग, इनके नेता कहाँ है? हमको 2 बच्चे हैं, हम भी चाह रहे तीसरा बच्चा हो, हम तो उसका पालन कर रहे हैं, हम चाह रहे हैं कि भाई उनके नसीब से आएंगे हमारे पास भी, चलो चलने दो, 3 बच्चे ठीक है, 2 बच्चे 3 बच्चे। लेकिन इनके ये जो लोग है ना सर, ये बोलते हैं, इन्होंने खुद ने क्यों शादी नहीं की, फिर इन्होंने क्यों नहीं बच्चे पैदा किए? आपको क्या लगता है क्यों नहीं किया सर? नहीं, ये सिर्फ बोलते हैं सर, ये लोगों को भड़काने के लिए बोलते हैं कि आप ऐसा होता नहीं है। मुसलमानों की जो आबादी है ना, ये जो बोलते हैं ना सर, 1 मिनट मैं आपको बात बोलता हूँ, मुसलमानों की आबादी जो बोलते हैं कि इतनी है उतनी है, अभी अकोला में जो है वो मुस्लिम को टिकट देती है, यहाँ पे 2 बार मुस्लिम सांसद था, और पिछले बार 14 और 19 में कांग्रेस ने मुसलमान को टिकट दिया कि यहाँ मुस्लिम पॉपुलेशन ज्यादा है। कितने है मुस्लिम? हमने, हमारे पास एक वोट गिना हुआ है हमने, तो 3,02,000 वोट थे 2019 में, पूरे 18 लाख में 17% है, 17%। अभी महाराष्ट्र में अगर वो बोलेंगे सबसे ज्यादा पॉपुलेशन अगर कोई है औरंगाबाद में, अकोला में 17% है, ये बोलते कि 20% है। हिंदुस्तान में 20% मुसलमानों की आबादी है ही नहीं, और हिंदुओं की आबादी 80% है, 75% है। अभी 20 वाले अभी इतने सालों से इनकी आबादी 20 के ऊपर गई नहीं, 17 के ऊपर ही गई नहीं आबादी मुसलमानों की। तो ये जो बोलना, और अभी जो नए लोग, नई पीढ़ी आ रही, तो इनमें तो 2 बच्चे 1 बच्चे ऐसे मुसलमानों में दिख रहा। तो मुसलमान भी, उनको भी है, उनको भी रोजी रोटी करना है, नौकरी नहीं है, और रोज कमाना रोज खाना, तो कहाँ से बच्चे पैदा करेंगे? उनको भी समझ में आ रहा, ज्यादा बच्चे को हम परवरिश नहीं कर सकते, हम खाना नहीं दे सकते, उनको शिक्षण नहीं दे सकते, ये भी सब बात समझ में आ रही, हिंदू हो या मुसलमान है। तो अभी तो ऐसा ज्यादा बच्चों का जो है ऐसा नहीं दिख रहा कि कोई ज्यादा बच्चे हो रहे हैं। ये सब अफवाह है, लोगों को भड़काने के लिए, लोगों को लोगों के दिल में इनसिक्योरिटी करने के लिए, असुरक्षितता पैदा करने के लिए ये
फैलाई जा रही है बात है, बाकी लेकिन कुछ ये ही अभी नहीं। दोबारा ये शुरू करने का क्या मतलब हुआ, मेरी समझ के बाहर है। मतलब ये इसका आप कैसे विश्लेषण करते हो कि ये बात जो है एक जमाने में 10-15 साल 20 साल पहले राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ, विश्व हिंदू परिषद, बजरंग दल के लोग कहा करते थे, ये बात दोबारा आप कैसे आ रही है? व्हाई इज इट कमिंग अगेन? अभी इलेक्शन आ रहे हैं सर, इलेक्शन आ रहे हैं सर, दोबारा इसलिए आ रही, बिहार का इलेक्शन है, बिहार में भी मुसलमानों की अच्छी आबादी है, वहाँ हिंदू मुस्लिम करने के लिए चांस है। अरे देखिए बिहार का इलेक्शन इनके लिए बहुत जरूरी है, क्योंकि बिहार में हार गई है कि इनकी सरकार, दिल्ली की सरकार चली गई, क्योंकि बिहार में हारने के बाद नीतीश कुमार के लोग तो सीधे सीधे आरजेडी के पास आएंगे, कांग्रेस के पास आएंगे, उनके सांसद भी इनके साथ ही आएंगे, क्योंकि उनको भी उनका भविष्य देखना है। तो वो तो भाजपा के साथ नहीं जाएंगे, क्योंकि भाजपा में हार गई बीजेपी, भाजपा के खिलाफ माहौल है, ये जब देखेंगे वो भाजपा के साथ नहीं जाएंगे, इनकी सरकार चली जाएंगी। बीएनके बट राहुल गांधी जी को भी आप उपदेश देंगे शादी करने के लिए, दोनों साहब? राहुल जी, सबकी इच्छा है सर, उन्होंने शादी करनी चाहिए, सबकी तो इच्छा है कार्यकर्ताओं की। But then it is Mohan Bhagwat ji who is saying it. It is not Congress that is saying it. So BNK sahab, how do you look at it? I mean, how has this thing come up again? Because all surveys, सारी सेंसस रिपोर्ट जितनी आई हैं, सर्विस जितनी आई हैं, फर्टिलिटी रिपोर्ट जितनी आई हैं, the Muslims don't have more children than anybody else. They are exactly the same. ये क्या है? Why has this come up again? I would love to know. What's going on बिहार का here? इलेक्शन है, अच्छा आपने बस बिहार का इलेक्शन है, बस Dr. Dhone is right. Dr. Dhone is right. It's the election issue because Bihar is very key for them. उसके बाद में फिर बंगाल होगा। आपने देखा होगा भी, whenever these kind of situations come up, you have Mr. Agnihotри's films like Kashmir Files, Bihar Files, Bengal Files. वो बंगाल केरला फाइल्स अंजाम क्या हुआ, वो क्या हुआ, उसका अंजाम क्या हुआ बंगाल फाइल्स का। तो वो तो Have you अभी seen it, by the way? आपने देखी है try to बंगाल make election issues out of this. मुद्दे पे बात कीजिए ना आप लोग। there are so many burning issues. Unemployment is an issue. आपका जीएसटी तो हो चुका है, पेट्रोल अभी तक जीएसटी पे नहीं आया, आप उसके ऊपर बात कीजिए, अनएम्प्लॉयमेंट के ऊपर बात कीजिए। सर पेट्रोल जीएसटी में कहां आएगा सर? क्यों आप स्टेट्स को आप ऐसी की तैसी कर रहे हो स्टेट्स की? दैट इज नॉट द सेंटर्स फॉल्ट। सेंटर वुड लाइक इट टू बी अंडर जीएसटी। जो स्टेट्स हैं वो बोल रहे हैं कि यार हमारा क्या होगा, क्योंकि बाय द टाइम, हैंग ऑन अ मिनट, लेट मी पुट दिस टू यू। जी जी सर, बाय द टाइम जीएसटी कम्स बैक टू द स्टेट, इट विल बी 6 months। हालत खराब हो जाएगी सर यहाँ पे। वो अभी तक स्टेट्स जितने हमारे जी रहे हैं, वो पेट्रोल और डीजल पे जो वैट लग रहा है उसके ऊपर जी रहे हैं। सर क्या बात कर रहे हैं आप? सर वेयर इज द इनकम? आप ये बताइए ना। एग्रीकल्चरल प्रोडक्शन इज डाउन, इंडस्ट्रियल आउटपुट इज लो, एवरीवेयर एल्स एवरीथिंग एल्स इज लो। आप मुझे बताइए वेयर इज द अर्निंग? महाराष्ट्र टुडे इज अर्निंग द मैक्सिमम अमाउंट फ्रॉम व्हाट? फ्रॉम एक्साइज ऑन लिकर। खुद बताइए ना सर आप, बीएनके साहब, कहां से लाएंगे पेट्रोल को जीएसटी में? नहीं, एक्साइज ऑन लिकर, टैक्सेस ऑन सिगरेट्स, ये सब ठीक है, होनी चाहिए, ज्यादा होनी चाहिए, 40% से भी ज्यादा होनी चाहिए, मैं मानता हूँ। लेकिन आम आदमी के कंजम्पशन वाली बात चीजें ना ये, आप ठीक है, लोग आवाज कुछ नहीं कर रहे, आवाज नहीं उठा रहे। इनफैक्ट मिस्टर गडकरी आल्सो सजेस्टेड GST petrol has to be come under GST करके। It has to. Mr. Gadkari also said इथेनॉल की बात, आप इथेनॉल की बात कीजिए। इथेनॉल के ऊपर इतना बड़ा ये हो रहा है, इथेनॉल अगर मिक्स होगा, पेट्रोल विल बी ब्रॉट डाउन टू 15 रुपीस, 50 रुपीस बात चल रही थी। 20% आज इथेनॉल मिक्स हो रहा है। हैज द पेट्रोल प्राइस कम डाउन टू दैट एक्सटेंट? उसका फायदा जो ऑयल कंपनीज को हुआ, आपको हमको पास ऑन किया गया है क्या? देखें ब्रिंग टू एटलीस्ट That will never happen. That won't happen because where is the money? Where else will the government make money from? BNK, they don't have the money. Let's be very clear. Where is the money? We are not earning enough. तो आप बढ़ाइए ना। You generate production. You see when you bring down the taxes. अरे BNK साहब, एक छोटी सी बात आपके सामने रखता हूँ। अभी जीएसटी के आपने 2 स्लैब्स कर दिए, 5% और 18% मोर और लेस। डॉक्टर ढोने सुनने वाली बात है। अब जो भी बिजनेसमैन जो है अच्छा धंधा शुरू करने वाला हो जाता है, उसके दरवाजे पे ईडी आ जाती है, सीबीआई आ जाती है, इनकम टैक्स आ जाती है, एसएफआई आ जाता है। भले वो दूध वाला हो, पान वाला हो, जो मर्जी हो, उसकी ऐसी की तैसी हो जाती है। धोबी मोची नाई, हर एक के घर पे तो ईडी आ जाता है। वो धंधा कहां से करेगा सर? आप ये बताइए मुझे। बिजनेस के लिए एटमोस्फेयर कहां है इंडिया में? आज डॉक्टर ढोने के, मान लीजिए, ही हैज गॉट 2 colleges राइट नाउ, टुमारो ही हैज, आई होप ही गेट्स 20, सर ही विल बी सिटिंग इन द ईडी ऑफिस। एंड लेट मी टेल यू दिस राइट नाउ, ईडी के दफ्तर में बैठे होंगे, वो बहुत बड़े आदमी बन गए
बहुत बड़े आदमियों के कैटेगरी में नाम आ जाएगा उनका। तो यहाँ पे धंधा करने कौन देता है? आप ये बताइए ना डॉक्टर ढोने, आप बताइए डॉक्टर ढोने। सर सबसे पहले तो आपके मुंह में घी शक्कर सर। जी बिल्कुल, थैंक यू। हाँ, आपने बहुत बड़ी बात बोली। हम भी चाहते आप जैसा बोले वैसे ईडी की आए हमारे पास, इंक्वायरी 100% करो। सर, आना भी हम चाहिए। तो अभी से, हाँ, हमारा भी नाम हो जाएगा, अखबारों में आ बिल्कुल, जाएगा बिल्कुल कि सर। इनके यहाँ भी ईडी की था ये रेड पड़ी है। 10,000 करोड़ हमारा भी रुपए नाम आ आपसे जाएगा, पूछा बहुत जाएगा पैसे आपके पास वाले हो 10,000 गए। करोड़ रुपए कहाँ से तो आए? बहुत अच्छी बात है जी, बट आई होप इट हैपेंस। दोनों साहब अभी पॉसिबल नहीं है। मोदी साहब का ऐतिहासिक डिसीजन कह रहे कि इंडिपेंडेंट इंडिया का सबसे अच्छा निर्णय है जीएसटी 2.0 सबको फायदा है इसमें। दोनों साहब तो ठीक है ना, तो ये तो सबसे पहले राहुल गांधी ने सुझाया था ना। जी, उन्होंने सुझाया बोलना था। चाहिए कि 8 हिंदुस्तान साल के का बाद किया सबसे ना, 8 साल के ऐतिहासिक बाद। फैसला जो हुआ वो राहुल गांधी जी के कहने पे किया हमने। करेक्ट है, बोला जीएसटी हाँ, के वो लागू बोलना होने के चाहिए। पहले, और इसकी शुरुआत राहुल जीएसटी गांधी के ने की है। लागू होने के पहले ही बोला था। हाँ, यही मुंबई में बोला था, राहुल गांधी ने कहा था कि मैक्सिमम 18% होना चाहिए, उसके ऊपर नहीं होना चाहिए भाई। मगर लोग मोदी झेल जी नहीं कह पाएंगे। रहे हैं कि ये सबसे ऐतिहासिक निर्णय है पूरे इंडिपेंडेंट इंडिया में। तो इससे अच्छा कोई निर्णय हुआ ही नहीं था। 8 साल क्यों लग गए ऐतिहासिक फैसला लेने में? जनता की पूरी लूट करने के बाद देखिए मणिपुर में सब लूट गया, मणिपुर में नुकसान हो गया, लोगों के हाल हो गए, उसके बाद मणिपुर जा रहे। अभी लोगों को 8 साल में लूटा है, उद्योगपतियों का कर्जा माफ किया, लूट किए लोगों की, उसके बाद कर रहे हैं आप और बदले ऐतिहासिक फैसला है। पहले दिन से करना था। But at the लोगों moment, की लूट तो नहीं होती। we are in a bit of a problem because Punjab is underwater, Himachal Pradesh is underwater, Uttarakhand is underwater, Jammu and Kashmir is underwater. So I hope they have a proper plan, especially पंजाब को लेकर के। पंजाब की तो इतनी हालत खराब है, इतनी हालत खराब है आज की तारीख में, सरकार की तरफ से you need a package which is worth at least 15 to 16,000 crores. वो अभी पंजाब को मिलना चाहिए। अगर वो नहीं मिला, it will be very, very, very unfair. Very frankly, that is my opinion. I hope it happens. I hope they don't discriminate against Punjab because Punjab is ruled by the Aam Aadmi Party and it is not a BJP ruled state or it is not an NDA ruled state. I hope they don't discriminate. So is the case with Himachal Pradesh. And I hope now people will wake up to the fact that you can't just keep felling trees, destroying rivers, destroying floodplains of rivers, building wherever you like. I hope they'll wake up to that fact. BNK, we'll discuss the salt pans the next time we meet. As soon as we meet, we'll discuss that. Thank you, gentlemen. Thank you very much for joining us. Great pleasure as always. Dr. Dhone, thank you very much. नमस्कार। BNK, बहुत-बहुत शुक्रिया आपका भी नमस्कार। आने के लिए। नमस्कार। Thank you. नमस्कार शेषे। But really, Pradeep ji, the fact remains that as far as the salt pans are concerned, I wish to God the Supreme Court would actually pay attention. कि साहब गुरुग्राम वाला हाल होने वाला है हमारा, मैं बता रहा हूँ आपको। अगर सॉल्ट पैन लैंड्स के ऊपर अगर मान लीजिए वहां पर कंस्ट्रक्शन हो गई तो क्या हाल होगा अपना? पानी जाएगा कहाँ यार? मतलब सर आज के तारीख में अगर कोई एनवायरनमेंट की बात करो, नॉट ओनली इन द कंट्री, आउटसाइड द कंट्री, सर बात ही नहीं करता कोई। प्लेटफॉर्म दैट इज प्राइम मिनिस्टर मोदी बोले कि वी नीड टू प्रोटेक्ट द एनवायरनमेंट, वी नीड टू प्रोटेक्ट मदर अर्थ। स्मॉल छोटे छोटे चीजों का बोले आप एसी ज्यादा फास्ट मत चलाइए, और एसी अगर चला रहे हो तो ब्लैंकेट क्यों ले रहे हो? बड़ा ब्लैंकेट लेके फिर एसी चलो, कल यू आर हर्टिंग द एनवायरनमेंट, यू आर हर्टिंग द ओजोन लेयर। आई मीन अपने एक एक चीज, बट एज यू से इफ दे आर नॉट इनकॉर्पोरेटिंग इट एट द ग्राउंड लेवल देन इट्स अ मैटर ऑफ कंसर्न। सर बोरीवली नेशनल पार्क के नीचे से सुरंग जाएगी अभी मेट्रो के लिए। दैट इज अ नेशनल पार्क, उसकी भी परमिशन मिल गई सुप्रीम कोर्ट से, और बचा क्या? So in any event, we'll have a discussion on that at some point of time. But thank you very much for joining us. That's all we've got for you in tonight's show. आज के शो में सिर्फ इतना ही। और अभी तक अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब करें। The fastest growing channel of the nation, Nation Now. The fastest growing channel of the nation, Nation Now. And remember, you heard it first on Nation Now on August the 25th कि ट्रम्प साहब जो हैं अपने टैरिफ हटाएंगे। You said it, yes. We said it right here. Yeah. 24 और 25 अगस्त के बीच में कि ये हटाने ही पड़ेंगे। There is no doubt about it. That's what I believed then, that's what I believe now. I hope everything works out. But what the good thing that has happened is we've worked out that hey, we need China and we need Russia. We need Russia, China, us, Brazil and South Africa. All the BRICS nations have to be together, whether we like it or not. That's it.
Trump, as you say, has forced the Chinese door to open to us. Yes. 2.4 lakh visas immediately issued to our professionals. They said, if you're losing something there, you're gaining something here. You're gaining something here. And there's every possibility we may be able to retain the American market and gain a new one in China. Exactly. And Russia, which would be fantastic. One fantastic. And Brazil, don't Yes. forget that. And South Africa. Right, that's it. That's all we've got for you in tonight's show. Subscribe जरूर करें चैनल को, जैसा कि अभी प्रदीप जी ने कहा, it is the fastest growing channel in India. और do send in your comments. अपने comments जरूर भेजें. प्रदीप जी और मेरी तरफ से आप सब लोगों को नमस्कार. Namaskar. जय हिंद, जय महाराष्ट्र, जय भवानी, जय शिवाजी, वंदे मातरम. Vande Mataram. भारत माता की जय, जय हिंद. Jai.